Hello guys, welcome back again. My name is Amit and it's code time. So we are back again with another video, and from this video onwards we are going to start something new parallelly along with the DSA series, and that is the weekly contest solution discussion. So in this series we'll be basically covering we'll be discussing the solutions for the problems of weekly contests that happen on LeetCode and other platforms as well that we'll see. So a lot of people ask me to make this video because it's helpful and helps you keep in check and helps you evaluate your pace. So here I am. So we'll be covering every problem starting from problem number 4 going up to the hardest problem and discussing their approach, their solutions, and a small review and opinion about how the problem was and if it was worth it or not. So yeah, so that was all. So let's directly jump to it without wasting any time. Okay, so before we start the discussion, I would like to give an overview about how the contest was. So personally, I didn't give the contest and later on solved the problems. And while solving, I found that the questions were actually quite hard and it wasn't very easy for anyone to, tackle all the problems, all the four problems within 1.5 to 2 hours. If you were able to, very good. You are actually very good. But I would say at least two problems could have been solved. Yeah. So I think that is what I observed because the last two questions were actually on the harder side, and especially for the third problem, I would like to make a special note. A third problem was especially, it was meant for frustrating the person or just confusing the user. But yeah, I think that the last two problems were actually quite hard enough to get through within the given time. So yeah, so I think that is all for the overview. Now let's start with the problem number one. That is the minimum pair removal to sort the array, part one. Right. So let's go to the question. It's an easy problem. We can see by the tag. So you are given an array nums. You can perform following operation any number of times. What is the operation? Select the adjacent pair with the minimum sum in nums. If multiple such pairs exist, choose the leftmost one. Replace the pair with their sum. Return the minimum number of operations needed to make the array non-decreasing. Okay, an array is said to be non-decreasing if each element is greater than or equal to its previous element. Okay, quite enough. Okay, so बेसिकली क्या बोलता है कि आपके पास एक इंटीजर array nums है, ठीक है, और उसमें आपको क्या करना है कि जितने भी एडिशन नंबर्स है, बेसिकली आपके पास n नंबर्स होंगे, तो यू वुड हैव n माइनस वन पेयर्स, राइट? आपके पास मतलब कोई भी दो एलिमेंट्स एडिशन आपने ले लिया साथ में, वो एक पेयर बनाता है. सो यू हैव टू टेक द सम ऑफ दिस पेयर, और आपको कहीं पुश करा लो, आप कहीं भी रख लो उन्हें, एंड यू हैव टू टेक द मिनिमम सम पॉसिबल. ठीक है, जितने भी पेयर्स बनेंगे उसमें से वो पेयर उठाओ जिसका सबसे कम सम, सबसे मिनिमम सम है. Okay, and if there are multiple such pairs, you have to choose the one that comes the first, जो कि array में सबसे पहले आता है अगर multiple ऐसे pairs exist करते हैं. उसके बाद क्या करना है? You would have to replace that pair with their sum. जैसे दो elements थे, उनको आप replace कर दोगे उनके sum से, right? In this way, you have to perform these queries and you have to tell कि minimum कितने operations आपको apply करने हैं such that your array becomes non-decreasing, or you could say it becomes sorted, right? So let's go to the test cases. पहला test case क्या है? 5 2 3 1. सो वी कैन सी यहाँ पर ये सॉर्टेड नहीं है, राइट? सो 5 2 3 1. सो 5 प्लस टू इज व्हाट? हमारे पास तीन पेयर, राइट? अभी 5 2 3 1 में हमारे तीन पेयर बनेंगे. 5 प्लस टू इज व्हाट? 7. 2 प्लस 3 इज 5 एंड 3 प्लस 1 इज 4. सो वी कैन सी कि 3 प्लस 1 हमको सबसे मिनिमम वैल्यू पेयर देता है. सो दिस बिकम्स बेसिकली क्या? 7 5 और 4, तो 4 मिनिमम है. सो वी विल रिप्लेस 3 एंड 1 विद देयर सम. सो आवर न्यू एरे बिकम्स व्हाट? 5 2 4, राइट? वी कैन सी बिकम्स 5 2 4. तो हमने एक ऑपरेशन कर लिया है. नाउ व्हाट डू वी हैव? अब हमारे पास दो पेयर्स बन सकते हैं. 5 प्लस 2 7, 2 प्लस 4 6. तो 6 क्योंकि मिनिमम है 7 और 6 के बीच में से, so that's why we'll replace 2 4 with 6. So now we get 5 6, right? So now we can see कि our array has become sorted. So इसका मतलब और ऑपरेशन अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, and we have done two operations. That's why the answer is 2. Right. In a similar way, we can see कि इस case में array already sorted है. We don't have to perform any operation. Right. Now let's look at the constraints. So constraints are actually very small. The size of the array is 50, and the values in the array would range from minus 1000 to plus 1000. Okay. So I think that is very very easy kind of constraint. तो आप इसमें brute force भी अगर लिखोगे तो बड़े आराम से चल जाएगा. Right. So my solution was basically very quite very simple enough. क्या किया सबसे पहले? First of all, declared the variables for getting the size of the array. Okay. Then I basically took a boolean function. So basically that this function would check कि मेरा array अभी sorted है कि नहीं है. Right. So what I'm doing, we can see here is a check function. So this function basically returns कि अगर मेरा array sort हो चुका है non decreasing order में या sorted order में, right? If it is true, then very good. If not, तो फॉल्स टर्न हो जाएगा. लेट्स से इफ यू गेट एनी पॉइंट जहां पर आपका जो प्रीवियस एलिमेंट है दैट इज बिगर देन द नेक्स्ट एलिमेंट, इसका मतलब एरे सॉर्ट नहीं हुआ एंड इट रिटर्न फॉल्स. सो इन दिस वे बेसिकली आई कीप अ चेक दैट कि मेरा एरे सॉर्ट हुआ है कि नहीं हुआ है. एंड नाउ व्हाट आई डू, आई जस्ट मेंटेन an answer variable that basically counts the number of operations. You take an idx variable, you take the minimum sum, you find the minimum sum and the index corresponding to the minimum sum. So you can see यहाँ पर मैंने लेस देन लगाया, लेस देन इक्वल टू नहीं लगाया. So basically if you put less than equal to, वो क्या करेगा? That will take the last pair that gives you the minimum sum. इसलिए आपको और आपको क्या चाहिए कि आपको लेफ्ट मोस्ट चाहिए. इन केस अगर मल्टीपल पेयर ऐसे हैं जिनका सेम सम आता है, यू हैव टू टेक द लेफ्ट मोस्ट, राइट? सो देयरफॉर दैट इज व्हाई वी हैव यूज्ड लेस देन, नॉट लेस देन इक्वल टू.
सो इन दिस वे बेसिकली यू गेट द मिनिमम सम एंड यू कैन सी कि हमने नम्स ऑफ आई प्लस वन यहाँ पर चेक किया हुआ इंटू मैक्स नहीं होना चाहिए बाय वील सी लेटर ऑन. सो नाउ व्हाट डू वी डू व्हेन वी गेट द वैल्यू कि हमें पता लग गया कि कौन सा पेयर है, देन वी जस्ट बेसिकली ऐड टू द प्रीवियस इंडेक्स. जैसे लेट्स से कि हमारा, let me just shift my, yeah, so I think my screen is visible, right? Yeah. Question one. So basically, let's say if we have like 5, 2, 3, and 1. So basically, what do I do when I get the IDX? So basically, this is what 0, 1, 2, 3. So हम basically ये पहले के तीन इंडेक्स ही कवर कर रहे हैं. So what do I do? I basically find this sum as the minimum one. So I take this index और मैं 3 में क्या कर देता हूँ, +1 ऐड कर देता हूँ. So you can see कि nums of IDX plus equal to nums of IDX plus 1 किया था. So my new array becomes what? 5, 2, it becomes 5, 2, 4, 1. So basically 1 को भी रिप्लेस करना है. So that's why what I do कि सिंस वी हैव टू एंश्योर कि हमारा एरे सॉर्टेड रहे, राइट, और क्योंकि हमने यहाँ पर ऑपरेशन अप्लाई किया, सो व्हाट डू आई डू, आई फर्स्ट ऑफ ऑल शिफ्ट ऑल द एलिमेंट्स जो कि हमारे बचे हुए हैं इसके बाद के. ओके, सो बेसिकली लेट्स से फॉर एग्जांपल दिस इज अ वेरी शॉर्ट एरे. ओके, लेट्स से फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ ऐसा एरे था लाइक 2, 1, 3, 5, 2, and let's say 6 and 1. Okay, so 2 plus 1 is what, 3, and I think this is the minimum value. So basically बन जाएगा 3, 3, 5, 2, 6 and 1. Again 3 plus 3 6, I think is the minimum one. So again what we'll do, we'll do 6, 5, 2, 6 and 1. Okay, now we can see what 6 plus 5 11, 5 plus 2 is 7, and 6 plus 1 is also 7. So what do? We just replace 5 2 with 7. Now we can see कि यहाँ पर minimum sum basically 5 और 2 का आएगा. सो दिस बिकम्स व्हाट 6, 7, और यहाँ पर 7 आना चाहिए, राइट, ये 2 गायब होना चाहिए. सो व्हाट डू, वी बेसिकली कॉपी ऑल द नेक्स्ट एलिमेंट्स जो भी इस वाले इंडेक्स, बेसिकली दिस इज द स्टार्टिंग इंडेक्स, दिस इज IDX plus 1. सो ऑल द वैल्यूज दैट आर प्रेजेंट आफ्टर IDX plus 1 हैव टू बी कॉपीड इन द एरे टू द लेफ्ट साइड, राइट. सो हम क्या करेंगे, जितने भी एलिमेंट्स इस साइड पे बचे होंगे उन सबको आगे कॉपी करते जाएंगे, सो दैट कि हमारी जितनी वैल्यूज बची हुई हैं वो सारी की सारी कॉपी हो जाए. सो व्हाट विल हैपन, यहाँ पर जो 2 है, 2 को हम रिप्लेस कर देंगे उसके नेक्स्ट एलिमेंट से जो कि 7 है, और ये जो इसके बाद वाले एलिमेंट्स हैं, व्हाट विल हैपन टू देम, सिंस हमें पता है कि यहाँ पर तो हमें कुछ मिला नहीं. ओके, सो व्हाटएवर इज द व्हाटएवर हैपेंस, सो व्हाट डू, वी जस्ट पुट int max एट द एंड ऑफ द array. व्हाई डू वी डू दिस, कि जो जो एलिमेंट हटता जा रहा है ना, तो उसके करस्पॉन्डिंग एंड में एक गैप बनता जाएगा. सो वो गैप को कवर कैसे करें, बिकॉज वी नो कि इंट मैक्स सबसे बड़ी वैल्यू है, और हमारे जो एरे में जो वैल्यूज है दैट आर बेसिकली व्हाट -1000 टू 1000. अगर आप सबका सम भी लोगे तो 50 इंटू -1000 या फिर 1000 होता है 50,000, राइट. सो इंट मैक्स इज एक्चुअली वेरी बिग दैन दैट. सो आप इंट मैक्स यूज करके आप पता लगा लोगे कि एंड में जो आपका नंबर है, यू कैन इंश्योर कि आपका जो एंड में नंबर है दैट इज ऑलवेज बिगर देन द प्रीवियस नंबर, राइट, इंट मैक्स डालने से. सो इससे आप जो चेकिंग वाला पार्ट है ना, वो इजी हो जाता है कि आपको चेक नहीं करना पड़ेगा कि ये नंबर पहले से था कि रिप्लेस किया गया है. सो व्हाट डू, बेसिकली whenever you know squash down the pairs to a single number, आपका एक गैप क्रिएट होता है, राइट. सो टू फिल इन दैट गैप वी बेसिकली यूज इंट मैक्स, कि ताकि वी एंश्योर कि आवर एरे सॉर्टेड फ्रॉम द एंड, राइट, कि हमारा एरे हमेशा एंड से सॉर्टेड रहेगा. सो दैट इज व्हाट आई डू. ओके, एंड इन दिस वे बेसिकली आई कीप ऑन काउंटिंग द नंबर ऑफ ऑपरेशंस, एंड या सो यू कैन सी हम क्या करते हैं, फिर IDX plus 1 से स्टार्ट करते हैं. वी कॉपी ऑल द नेक्स्ट एलिमेंट्स जो कि हमारे एरे में प्रेजेंट है, एंड देन वी जस्ट मार्क फॉर द लास्ट एलिमेंट जो कि अभी नया गैप बन के आया है, वट एवर द न्यू गैप दैट हैज कम इन. ओके, आफ्टर परफॉर्मिंग दिस ऑपरेशन उसको हम फिल कर देते हैं इंटू मैक्स से. दिस ensures that my array remains sorted throughout, and that is I think all. And after, whenever you get a condition where your arrays become sorted, you just return the answer. So basically you can see that this operation can be done at max n times, right. It is possible that your answer goes n, right, and for each n you basically check your array every time that if your array is sorted. So basically the time complexity of this approach is basically order n square, and there is no space complexity, it's order 1 basically. So yeah, that is how you are going to solve the problem number 1. And yeah, next we'll move on to problem number 2. So let's start with problem number 2. So the name of the problem is implement router, and it's a medium level question. So first of all, I would say that such kind of problems are very nice and they're very helpful in improving our DSA knowledge. Why? Because generally such questions involve use of multiple data structures for performing a specific task. आप बहुत सारे data structures को use करते हो किसी एक service को implement करने के लिए. This is very near to the real life problem solving, जहाँ पर आप कोई service लिखते हो, right, for solving a particular task. For example, let's say आप कोई application खोलते हो तो आपको एक multiple options मिलते हैं.
यूज करने के लिए, एंड यू कैन प्रेस ऑन एनीथिंग, यू कैन परफॉर्म पर्टिकुलर टास्क साइमल्टेनियसली, राइट? यू हैव जस्ट हैव टू कॉल और प्रेस दैट बटन और पीछे वो काम हो जाता है. सो हाउ डज दैट हैपन? इट्स बेसिकली सेम एज राइटिंग दिस कोड इन द बैक एंड, राइट? वो ऐसे ही काम करता है. इट्स वेरी क्लोजली रिलेटेड टू रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, राइट? एंड ऑल्सो इट ऑल्सो हेल्प्स यू इन इंप्रूविंग योर नॉलेज ऑफ एलएडी, लो लेवल डिजाइन प्रॉब्लम्स, लाइक डिजाइनिंग अ पार्किंग सिस्टम. वहां पर आपको बहुत अच्छा नॉलेज चाहिए होता है, लाइक द कॉन्सेप्ट्स ऑफ इनहेरिटेंस, डिजाइनिंग अ क्लास, डिजाइनिंग फंक्शंस, right? And these kind of नॉलेज इज वेरी हेल्पफुल, राइट, फॉर सॉल्विंग एलईडी प्रॉब्लम्स. और ऐसे क्वेश्चंस करने से आपको एक बहुत अच्छा मोटिवेशन, एक बहुत अच्छा ग्राउंड बेस मिल जाता है कि आप कैसे उन क्वेश्चंस को लगा सकते हो. इट हेल्प्स इन लॉजिक बिल्डिंग, राइट? एंड दैट्स व्हाई दीस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स आर वेरी नाइस. These can help you a lot. And some examples I would say, like implementing stacks with queues, LRU cache problem, right? And then there are a lot of things like MRU as well, right? So you can try out those problems as well, right? But now let's focus on this problem कि ये कैसे करना है. So let's go to the problem. So design a data structure that can efficiently manage data packets in a network router. So आप देख सकते हो फिर से हम बेसिकली एक सर्विस इंप्लीमेंट ही कर रहे हैं, टू बी ऑनेस्ट, राइट? हम एक ऐसा क्लास लिख रहे हैं, एक डेटा स्ट्रक्चर बनाने वाले हैं, राइट, कंप्लीटली, विच कैन एफिशिएंटली हैंडल एडिंग ऑफ डेटा पैकेट्स. एक राउटर में, एक नेटवर्क राउटर है जो कि डेटा पैकेट रिसीव करता है एक कम्युनिकेशन में, राइट? And each data packet has following three attributes. What are they? We have a source, a unique identifier for the machine जहां से वो जनरेट हुआ है. Then we have a target destination जहां उसको जाना है. And then we have a timestamp, the time at which this particular packet was received at the router. Right? ये तीन attribute से हमारा डेटा पैकेट बनता है. Now we have to implement the router class. और router class में क्या क्या है? We first have memory limit. Memory limit basically defines कि how many data packets can your router store at a given time. ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल अगर तीन डेटा पैकेट्स है तो तीन ही वो स्टोर कर सकता है, तीन से आप चौथा नहीं स्टोर करा सकते, राइट? और एल्स आपको ओवरराइट करना पड़ेगा पैकेट्स को, राइट? सो वी सी मेमोरी लिमिट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पैकेट्स दैट द राउटर कैन स्टोर एट एनी गिवन टाइम, राइट? इफ एडिंग अ न्यू पैकेट वुड एक्सीड दिस लिमिट, द ओल्डेस्ट पैकेट मस्ट बी रिमूव्ड टू फ्री अप द स्पेस. सो इसीलिए मैं कह रहा था कि इट इज वेरी सिमिलर टू एलआरयू प्रॉब्लम, राइट? कि इन केस अगर आप एक नया पैकेट ऐड कर रहे हो बट आपका जो मेमोरी लिमिट है वो एक्सीड हो रहा है, लेट्स से आपका मेमोरी लिमिट 3 था और आप चौथा पैकेट ऐड करने की कोशिश कर रहे हो, you have to remove the oldest packet that was present in the router. जिसका भी ओल्डेस्ट टाइम स्टैम्प होगा उसको आप रिमूव कर दोगे, तब जाके आप नए पैकेट को ऐड कर पाओगे, राइट? एंड दैट इज बेसिकली कि ये राउटर क्लास के बारे में. देन द राउटर क्लास हैज थ्री फंक्शंस: ऐड पैकेट, फॉरवर्ड पैकेट एंड गेट काउंट. इसके बारे में देखते हैं. ऐड पैकेट में क्या होता है? इन सोर्स, डेस्टिनेशन एंड टाइम स्टैम्प, ये तीन चीजें होती हैं. सो बेसिकली द एट्रिब्यूट्स ऑफ अ न्यू पैकेट. अ पैकेट इज कंसिडर्ड अ डुप्लीकेट इफ अनदर पैकेट विद सेम सोर्स, डेस्टिनेशन एंड टाइम स्टैम्प ऑलरेडी एग्जिस्ट. अगर पहले से कोई ऐसा पैकेट है जिसके पास सेम एट्रीब्यूट्स हैं तो हम उसको ऐड नहीं करेंगे बिकॉज इट इज अ डुप्लीकेट, राइट? इन सच केस नथिंग विल हैपन, जो भी था वैसे ही रहेगा, राइट? रिटर्न ट्रू इफ द पैकेट इज सक्सेसफुली एडेड, अदरवाइज इट इज फॉल्स. सो वी कैन सी अगर डुप्लीकेट होगा तभी हमारा फॉल्स रिटर्न होगा, एल्स हमारा हमेशा जो ऐड पैकेट वाला फंक्शन है वो ट्रू रिटर्न करेगा. इन केस हमारे पास अगर स्पेस है तो हम डायरेक्टली ऐड कर देंगे. इन केस इफ वी डोंट हैव द स्पेस, वी विल ओवरराइट द लास्ट और द ओल्डेस्ट पैकेट, राइट? उसको रिमूव कर देंगे और नए पैकेट को ऐड कर देंगे अपने राउटर में, राइट? सो दैट इज बेसिकली द ऐड पैकेट फंक्शन. देन वी हैव इन फॉरवर्ड पैकेट. फॉरवर्ड द नेक्स्ट पैकेट इन फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ऑर्डर. सो बेसिकली जो भी ओल्डेस्ट पैकेट था, जो सबसे पहले आया था, वो सबसे पहले बाहर भी जाएगा, राइट? रिमूव द पैकेट फ्रॉम स्टोरेज, रिटर्न द पैकेट एज एन एरे, सोर्स डेस्टिनेशन टाइम स्टैम्प. एंड इफ देयर आर नो पैकेट्स फॉरवर्ड, रिटर्न एम्प्टी एरे. अगर कुछ भी नहीं है राउटर में तो आप कुछ भी रिटर्न नहीं करोगे, एम्प्टी एरे रिटर्न करोगे, राइट? देन वी हैव द फाइनल फंक्शन दैट इज द गेट काउंट फंक्शन, जहां पर एक डेस्टिनेशन है, एक स्टार्ट टाइम और एंड टाइम मेंशन्ड है. So what you have to return? Returns the number of packets currently stored in the router that have the specified destination and have the timestamps in the inclusive range start time, end time. सो बेसिकली गेट काउंट फंक्शन क्या करता है कि गिवन अ पर्टिकुलर डेस्टिनेशन, कि इस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे जाने वाले कितने डेटा पैकेट्स हैं जिनका टाइम स्टैम्प जो है वो स्टार्ट टाइम से लेके एंड टाइम के बीच में लाई करता है, आपको उनका काउंट रिटर्न करना है, राइट? सो दैट इज बेसिकली कि आप क्या करने वाले हो, राइट? ये एक क्वेरी, ये नोट पढ़ लेते हैं. नोट दैट द क्वेरीज फॉर ऐड पैकेट विल बी मेड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ टाइम स्टैम्प. और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए. यहाँ पर ये वाला ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है. यू आर गोइंग टू रिसीव एवरी क्वेरी ऑफ एडिंग पैकेट इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ टाइम स्टैम्प. इसका मतलब आपका ऑलरेडी जो टाइम स्टैम्प के अकॉर्डिंग जो पैकेट्स हैं वो ऑलरेडी अरेंज्ड है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, राइट? कि अगला पैकेट जो आएगा उसका टाइम स्टैम्प वुड ऑलवेज बी बिगर देन और इक्वल टू द प्रीवियस पैकेट्स, राइट? ये इंपॉर्टेंट है. Okay, now let's go with the example number one. So first of all, we have a router. We initialize with memory limit 3. Okay, we first add the packet 1490, right? ठीक है, तो 1490 का मतलब क्या है कि पहला पैकेट ऐड किया, उसका 90 टाइम स्टैम्प है. So since ये सक्सेसफुली ऐड हो गया तो we return true. Then we add 2590. ऐसा पैकेट एग्जिस्ट नहीं करता है तो हम फिर से ट्रू रिटर्न करते हैं. देखो टाइम स्टैम्प सेम हो सकता है पर अगर तीनों एट्रीब्यूट सेम हो तभी वो डुप्लीकेट कहलाता है, राइट? Then we have 1490. We can see 1490 पहले भी आ चुका है. This means this is a duplicate packet. We will not add this to the router and we will return a false. Then we have 3595. तो सिंस क्योंकि एग्जिस्ट नहीं करता है तो ऐड हो जाएगा. वी हैव ट्रू. सो नाउ वी करेंटली हैव थ्री पैकेट्स इन अ राउटर: 1490, 2590 एंड 3595.
ठीक है, और इसी ऑर्डर में, करेंटली इसी ऑर्डर में भी है। ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि फीफो टेक्निक हमें अप्लाई करनी है, राइट। देन वी हैव द फोर्थ पैकेट, दैट इज 45105। नाउ वी कैन सी कि हमारे पास एक चौथा पैकेट आया और हमारी मेमोरी लिमिट एक्सीड हो रही है, तो हम क्या करेंगे, सबसे ओल्डेस्ट पैकेट को रिमूव कर देंगे जो कि है 1490। 1490 को रिमूव करते ही 2590, 3595 और 45105 हमारे पास बचेगा, राइट। अब तीन पैकेट्स हैं। देन वी कॉल फॉरवर्ड पैकेट। फॉरवर्ड पैकेट क्या करता है, जो सबसे पुराना पैकेट था अभी जो करेंटली राउटर में एग्जिस्ट करता है, उसको रिमूव कर देगा, उसको फॉरवर्ड कर देगा, और वो है 2590, क्योंकि 1490 तो रिमूव हो गया था। दैट्स व्हाई वी सी वी हैव 2590। नाउ हमारे पास हमारे राउटर में करंटली फिर से दो बचे हैं पैकेट सिर्फ, तो हम एक नया पैकेट ऐड कर सकते हैं। दैट्स व्हाई 5210 हमने ऐड किया। तो व्हाट डू वी गेट 5210। अब हमारे पास तीन पैकेट फिर से हो गए। कौन कौन से? 3595, 45105 एंड 5210, राइट। नाउ वी गेट टू द फाइनल गेट काउंट फंक्शन। गेट काउंट क्या कहता है कि मुझे वो सारे डेटा पैकेट चाहिए जो कि 100 से लेकर 110 के टाइम स्टैम्प के बीच में आए हैं, और उनका डेस्टिनेशन टारगेट जो है वो है 5। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि कौन कौन ऐसा है जो कि 5 में आने वाला है। बेसिकली देखो तुम्हारा 3595 इसका डेस्टिनेशन 5 है। यस, ओके, ये इसमें आता है। देन वी हैव 45105, ओके, ये भी आता है। देन वी हैव 5210। सो बेसिकली इसका डेस्टिनेशन 2 है, तो इसको हम ले नहीं सकते, राइट। वी कैन नॉट टेक इट, वी कैन नॉट टेक इनटू अकाउंट, राइट। अब हमारे पास दो पैकेट है जो कि ये दोनों हैं, और हमारा टाइम रेंज क्या है, 100 से लेके 110। वी कैन सी कि इस वाले पैकेट का टाइम स्टैम्प 95 है, विच इज लेस देन द स्टार्टिंग टाइम, राइट। तो इसका मतलब ये पैकेट को हम कंसिडर नहीं कर सकते, राइट। द नेक्स्ट पैकेट इज 105, जिसका जो टाइम स्टैम्प है दैट लाइज इन द रेंज फ्रॉम 100 टू 110। दैट्स व्हाई हमारे पास सिर्फ एक पैकेट ही ऐसा बचता है जो कि स्पेसिफाइड इंटरवल में आया है, और उसका डेस्टिनेशन टारगेट 5 है। दैट्स व्हाई वी कैन सी कि हमारा आंसर 1 आया है, 2 नहीं, 1 आया है, राइट। सो आई थिंक दिस एग्जांपल वाज इनफ फॉर एक्सप्लेनिंग कि ये प्रॉब्लम क्या चाहता है आपसे, आपको क्या करना है। एंड नाउ वी कैन डायरेक्टली जंप टू द सॉल्यूशन कि इसको आके सॉल्व कैसे करना है, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा कि मैंने कहा कि दिस प्रॉब्लम इज वेरी नियर टू हाउ वी सॉल्व द एलआरयू प्रॉब्लम, सो उसी से थोड़ी मोटिवेशन लेते हैं, राइट। नाउ लेट्स मी राइट प्रॉब्लम नंबर 2। ओके, ओके। तो आप ये देखो, आप क्या कर सकते हो, जब भी कोई पैकेट आ रहा है, ठीक है, लेट्स से कि आपके पास एक एरे है, ठीक है। एरे मतलब क्या, वेक्टर बेसिकली है, क्योंकि आपको नहीं पता कि कितने पैकेट्स आने वाले हैं, राइट। सो लेट्स से व्हेनेवर यू गेट अ पैकेट, आप इसको स्टोर कराते जाओ लगातार, ठीक है। जैसे एक पैकेट आया, आपने स्टोर करा दिया, आपने स्टोर करा दिया। अब सिंपल सी बात है, इसकी एक लिमिट भी होगी, राइट। इसकी एक लिमिट डिफाइंड है जो कि बेसिकली आई विल नॉट मार्क लिमिट हियर, मैं इसको ओपन रखूंगा, पर लिमिट को हम मैन्युअली हैंडल कर सकते हैं। लेट्स टेक, मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ, काउंट, जो कि मुझे बताएगा कि करंटली कितने बेसिकली मेरे वो हो चुके हैं, कितने पैकेट्स आ गए हैं, राइट। तो बेसिकली मान लो इसका जो लिमिट था वो 3 था, कि 3 जैसे ही 3 इसका लिमिट है, राइट। सो एक पैकेट आया, पैकेट 1, फिर पैकेट 2 आया, पैकेट 3 आया। अब जैसे ही पैकेट 4 आएगा, व्हाट डू आई डू? सिंपल सी बात है, आई हैव टू स्टॉप कंसीडरिंग दिस पैकेट एज अ पार्ट ऑफ द राउटर, राइट। अगर आप इसको रिमूव करने बैठोगे, ठीक है, कि भाई मैं इसको रिमूव कर दूं, ठीक है, आप अब टू बी ऑनेस्ट कि एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के मल्टीपल अप्रोच हो सकते हैं, पर मैं आपको तो बता रहा हूँ, दिस इज एक्चुअली वेरी क्वाइट फीजिबल और बहुत एलिगेंट है, बहुत सिंपल है समझने में। सिंपल सी बात है, हम यहाँ पर स्लाइडिंग विंडो काइंड ऑफ अप्रोच लगाने वाले हैं। सिंपल सी बात है, वी कैन सी आवर विंडो साइज इज व्हाट 3, राइट। तो जैसे ही आप ये चौथा पैकेट डालोगे ना, यू विल जस्ट इंक्रीमेंट दिस व्हाट दिस पॉइंटर वेरिएबल। लेट्स से मैं यहाँ पर एक पॉइंटर वेरिएबल आई इज इक्वल टू 0 ले लेता हूँ। जैसे ही मैं चौथा पैकेट ऐड करूंगा, आई कैन से कि नाउ वी डोंट हैव टू लुक एट दिस पैकेट, क्योंकि दिस इज आउट ऑफ रेंज, दिस इज नो लॉन्गर अ पार्ट ऑफ द राउटर। सो आई विल इंक्रीज माई टाइम स्टैम्प बाय my iter वेरिएबल, दैट इज I to 1। अब बेसिकली दिस मींस कि हम I इक्वल टू 1 से स्टार्ट करके जो बचे हुए पैकेट्स हैं उनको देख रहे हैं। इन दिस वे बेसिकली वी कैन स्टोर ऑल द पैकेट्स, राइट। तो आप क्या कर सकते हो, आप दो एरे बना सकते हो, या फिर या फिर एक एरे बना सकते हो, आपकी जो मर्जी हो। और तीन भी एरे बना सकते हो कि सोर्स डेस्टिनेशन टाइम स्टैम्प तीनों के लिए अलग अलग बनाओ। बट टू बी ऑनेस्ट, आई थिंक दो एरे आर मोर देन इनफ। एक एरे में आप टाइम स्टैम्प रख लो, राइट। और फिर दूसरे में आप जो बाकी बची हुई इन्फो है, दैट इज द सोर्स एंड टारगेट, SRC एंड डेस्टिनेशन, वो आप रख सकते हो, राइट। अब पॉइंट ये आता है कि ये तो बेसिकली हमारा काम हो गया कि एडिंग ऑफ द पैकेट, ठीक है। दिस विल हेल्प इन यू नो चेकिंग इफ द पैकेट हैज ऑलरेडी बीन एडेड और नॉट, ठीक है, पैकेट को ऐड करने के लिए, राइट। नाउ एट द सेम टाइम हमें याद है कि हमें डुप्लीकेट भी चेक करना था, राइट। व्हाइल ऐड पैकेट, हम ऐड पैकेट वाले फंक्शन को भी यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। सिंपल सी बात है, अगर क्या कहते हैं, ये पैकेट ऐड नहीं हुआ, एग्जिस्ट नहीं करता है, तो वेरी टू रिटर्न हो जाएगा। बट लेट से कल को आपके पास एक डुप्लीकेट पैकेट आता है, राइट। डुप्लीकेट पैकेट में मतलब तीनों एट्रीब्यूट सेम होते हैं, तो उसको चेक करने के लिए आप क्या कर सकते हो, यू कैन यूज अ मैप और अनऑर्डर्ड मैप और वट एवर यू वांट टू यूज, ठीक है। इस मैप को आप क्या बनाओगे, इस मैप में बेसिकली आप वेक्टर शो कराओ या पेयर ऑफ कुछ भी आप शो करा सकते हो। सो बेसिकली क्या होगा उसमें, पहला सोर्स, फिर डेस्टिनेशन और टाइम स्टैम्प। अगर ये की जो है
ये अगर की जो है वो मैप में ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, दिस मीन्स कि वी ऑलरेडी हैव दिस पैकेट, और ये जो हमारा अभी आया है वो डुप्लीकेट पैकेट है। सो यू कैन डायरेक्टली टेक अ मैप एंड यू कैन कीप ऑन एडिंग पैकेट्स टू द मैप। इफ यू फाइंड अ डुप्लीकेट, दिस मीन्स कि इस पैकेट को ऐड नहीं करना है एंड यू रिटर्न फॉल्स। अदरवाइज यू विल फॉलो द अबव प्रोसीजर, कि आप सबसे पहले देखोगे कि आपका जो लिमिट है वो एक्सीड तो नहीं हो रहा है। अगर एक्सीड नहीं हो रहा है तो वेरी गुड, अगर एक्सीड हो रहा है तो अपने आइटर वेरिएबल को बढ़ा दो। एट द सेम टाइम क्या कहते हैं, अपना जो आपका मैप है उसमें आपको स्टोर कराना पड़ेगा कि अच्छा नया पैकेट आया है, सो दैट कि आप नेक्स्ट टाइम डुप्लीकेट चेक कर पाओ, राइट। तो दिस वे बेसिकली यू विल इंप्लीमेंट ऐड पैकेट। सो आप देख सकते हो कि एवरी फंक्शन इज मोर और लेस इंडिपेंडेंट वर्किंग, राइट। सबको ना आपस में कंफ्यूज नहीं होना है कि हॉच पॉच कर दिया कि भाई ये कैसे करो, कि ये क्या इससे रिलेटेड, ये कैसे रिलेटेड। यू हैव टू डेवलप दैट थिंग कि अच्छा पहले इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, इस सब टास्क को सॉल्व करते हैं। यू कैन सी, यू कैन एक्चुअली डिवाइड दिस होल टास्क इनटू मल्टीपल सब टास्क। ठीक है, एक बड़ा टास्क था, उसको मल्टीपल सब टास्क में बांट दिया। पहले पहला सब टास्क कर लिया, फिर दूसरा कर लिया, फिर तीसरा कर लिया। तो यहाँ पर हमने पहला सब टास्क जो था, दैट इज बेसिकली ऐड पैकेट, वो हमने यहाँ पर सक्सेसफुली कर लिया है। ठीक है, नाउ वी गो टू द यू नो द सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या था हमारा? सेकंड पॉइंट था हमारा व्हाट इट वाज, फॉरवर्ड पैकेट, राइट। फॉरवर्ड पैकेट, फॉरवर्ड पैकेट। ठीक है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये इंपॉर्टेंट चीज कैसे है? फॉरवर्ड पैकेट टू बी ऑनेस्ट वैसे इतना डिफिकल्ट पड़ेगा नहीं। ठीक है, ये ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं? बिकॉज डायरेक्टली याद करो, लास्ट स्टेप में यू आर मेंटेनिंग टू एरेज, राइट। आपके पास डायरेक्टली टू एरेज थे। तो आपका जो आई वेरिएबल है, आई आइटर वेरिएबल जो भी है, वो करेंटली जहां भी पॉइंट कर रहा होगा, राइट, वो करेंटली जहां भी पॉइंट कर रहा होगा, वो आपका ओल्डेस्ट टाइम स्टेप होगा, राइट। वो आपका ओल्डेस्ट टाइम स्टेप होगा, करेक्ट। मैं कह सकता हूँ लेट से यहाँ पर मैं टाइम स्टेप लिख देता हूँ 1 2 3 4। अभी मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्यों लिखे? क्योंकि ऑलरेडी हमको पता है, हमको बोल रखा है कि टाइम स्टेप इंक्रीजिंग ऑर्डर में आएंगे, राइट। तो ऐसे ही इसका कुछ इन्फो होगा, कुछ मान लो SRC और डेस्टिनेशन कुछ होगा, ऐसे ऐसे करके सब में होगा, राइट। सो हमारा क्योंकि जो टाइम नहीं, मेमोरी जो था वो 3 का था, सो ये तो हमारा कट ही गया, मान लो ये तो हमारा है ही नहीं, राइट। सो वेरेवर करेंटली और आई वेरिएबल, और जहां भी आपका आइटरेटर जो पॉइंट करता है, वही बेसिकली आपका क्या है? ओल्डेस्ट डेटा पैकेट है, राइट। वही आपका ओल्डेस्ट टाइम स्टैम्प है। तो आपको बेसिकली इसी को रिमूव करना है। इसी को रिमूव करने का मतलब है, अब हो सकता है जैसे कि हमने देखा था अभी पहले ही केस में, कि एक सेम टाइम स्टैम्प पे मल्टीपल पैकेट्स आ सकते हैं जिनका सोर्स और डेस्टिनेशन अलग हो। टाइम स्टैम्प सेम है, लेकिन सोर्स और डेस्टिनेशन अलग अलग है। इसका मतलब क्या है? इसमें आती है हमारी प्रॉब्लम। इसमें बेसिकली आप ये चीज, वैसे तो कोई प्रॉब्लम इतनी बड़ी आएगी नहीं, टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, आई मीन वो आप हैंडल डायरेक्टली कर सकते हो, या ठीक है, उसको डायरेक्टली भी हैंडल कर सकते हो। तो व्हाट यू डू, कि आप जस्ट देख लेते हो कि लास्ट आपका क्या कहते हैं, वो क्या आया था, बेसिकली जो भी क्या कहते हैं आपका पैकेट आया था। तो बेसिकली अगर 2 के मल्टीपल पैकेट्स भी आए होंगे, तो क्योंकि हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में स्टोर करा रखा है, तो आपके अगर मान लो मल्टीपल पैकेट्स भी होंगे तो वो कैसे होंगे? ऐसे 1 1 2 2 ऐसे करके पैकेट स्टोर होंगे, राइट। कि अगर 2 के मल्टीपल भी हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आपका जो आइटर वेरिएबल है वो सबको धीमे धीमे काउंट करते हुए आगे बढ़ेगा, राइट। सो अगर मान लो आप यहाँ पर हो, तो इट विल लुक एट दिस करेंट पैकेट, राइट। अब क्या करना है? इस पैकेट को रिमूव कर देना है। इस पैकेट को रिमूव करने के लिए क्या करना है? डायरेक्टली अपना जो आइटरेटर वेरिएबल है, आई है, उसको +1 कर दो। इसका मतलब क्या है? कि आप यहाँ से आगे बढ़ गए। ठीक है, आप यहाँ से मान लो करेंटली आपका आई वेरिएबल यहाँ पॉइंट कर रहा था, और ये आपका जो करंट राउटर था। ठीक है, आप फॉरवर्ड पैकेट चलाओगे तो दिस पैकेट इज गोइंग टू बी रिमूव। इस पैकेट को रिमूव करने से कैसे करोगे? बस अपने आइटर वेरिएबल को +1 कर दो, यहाँ लाओ, ले आओ। दिस मीन्स कि आप ये पिछले वाले जितने पैकेट्स थे वो अब नहीं रह गए राउटर में, आई प्लस प्लस कर दोगे। एट द सेम टाइम जो आपने एक प्रेजेंट नाम का एक मैप रखा था, याद है, जिसमें आप देख रहे थे कि भाई ये पैकेट अभी है कि नहीं, क्योंकि इस पैकेट को आपने रिमूव कर दिया है अपने राउटर से, इसलिए आपको वो जो मैप था उससे भी रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि अब दिस पैकेट इज नो लॉन्गर पार्ट ऑफ द राउटर, राइट। सो इसको रिमूव कर दोगे, बस और कुछ नहीं करना है, राइट। एंड दिस बेसिकली हाउ यू विल इंप्लीमेंट फॉरवर्ड पैकेट। बहुत ही सिंपल। डायरेक्टली आपका जो एरे है और जो पॉइंटर वेरिएबल है, आप डायरेक्टली उससे देख पा रहे हो कि आपको किसको बढ़ाना है, और बस एक +1 बढ़ा दिया और आपको पैकेट रिमूव हो जाएगा, वो फॉरवर्ड हो जाएगा, राइट। नाउ कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन, दैट इज गेट काउंट। ये फंक्शन थोड़ा ट्रिकी है। ये फंक्शन ट्रिकी क्यों है? इसमें डेस्टिनेशन दिया है, स्टार्ट टाइम दिया है, एंड टाइम दिया है। ठीक है, डेस्टिनेशन तक ठीक है। ठीक है, ये स्टार्ट टाइम और एंड टाइम का चक्कर क्या है, क्या सीन है बॉस, ये देखते हैं पहले। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमको एक चीज क्या याद है, कि वेनेवर वी आर एडिंग अ पैकेट, वेनेवर वी आर एडिंग अ पैकेट, तो हमें क्या एट्रीब्यूट्स मिलते हैं? हमें एट्रीब्यूट्स मिलते हैं सोर्स, डेस्टिनेशन और उसका टाइम स्टैम्प। और ये फंक्शन डील करता है बेसिकली इन दो एट्रीब्यूट्स के साथ में, राइट। तो आप क्या कर सकते हो? आप एक और मैप बना सकते हो। आप एक और मैप बना सकते हो जिसका की होगा इंटीजर टाइप का। इंटीजर बेसिकली मीन्स कि डेस्टिनेशन क्या होगा, और इसके क्या कहते हैं बेसिकली, इसके वैल्यू में आप एक वेक्टर बनाओगे, वेक्टर ऑफ इंट, जो बेसिकली स्टोर करेगा कि टाइम स्टैम्प क्या है, राइट। अब सेम डेस्टिनेशन पे जाने वाले मल्टीपल डेटा पैकेट्स हो सकते हैं। ठीक है, सेम डेस्टिनेशन पे देखो जा रहे हैं,
पर इनका टाइम स्टैम्प अलग अलग है, राइट? दैट इज वाई हम एक ऐसा मैप बना के रखेंगे जिसमें हम इन पैकेट्स का टाइम स्टैम्प शो करेंगे अकॉर्डिंग टू द डेस्टिनेशन। जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल मेरे पास 3 पैकेट आए जिनका टाइम स्टैम्प 95, 100 और 105 था, और मैंने फिर से याद रखना इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है क्योंकि मेरे को क्वेरीज ही इंक्रीजिंग ऑर्डर में मिलेंगी। दैट्स वाई ये जो गेट काउंट फंक्शन है ये आपका इजीली हो पा रहा है, राइट? नहीं तो फिर इसको सॉल्व करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता अगर अरेंज ना होता आपका आपकी क्वेरीज, राइट? सो बेसिकली आपका मैप कुछ ऐसा लगेगा, 95, 100 और 105, राइट? कि 5 आपका डेस्टिनेशन है और उसमें 3 डेटा पैकेट्स प्रेजेंट है, राइट? सो इन दिस वे यू विल स्टोर द पैकेट्स अकॉर्डिंग टू द डेस्टिनेशन का टाइम स्टैम्प, राइट? अब सिंपल सी बात है, इन पे आइटरेट भी करना है। एट द सेम टाइम जब आप सिंपल सी बात है, जब आप किसी पैकेट को रिमूव करोगे या फॉरवर्ड करोगे तो आपको बढ़ाने भी पड़ेगा, राइट? सिंपल सी बात है, अगर मान लो मैंने ऐड पैकेट के टाइम पे या फॉरवर्ड पैकेट करने के टाइम पे इस पैकेट को, इस 95 वाले पैकेट को रिमूव किया है, तो मुझे अपने डेस्टिनेशन जो मेरा मैप है उससे भी हटाना पड़ेगा, ठीक है? उससे भी हटाना पड़ेगा। अब सिंपल सी बात है, इसको अगर हटाने बैठोगे तो भाई सिंपल सी बात है, एक एरे से किसी भी चीज को रिमूव करने का टाइम ऑर्डर एन जाता है। तो वी विल डू अ वेरी क्लेवर थिंग, हम एक क्लेवर टेक्निक लगाते हैं। हम क्या करते हैं, डेस्टिनेशन का मैप तो बना ही रखा है, ठीक है? डेस्टिनेशन के मैप में बेसिकली डेस्टिनेशन और तुम्हारा उसका वेक्टर स्टोर्ड है। हम क्या करते हैं, हम फिर से पॉइंटर का इस्तेमाल करेंगे। हम फिर से पॉइंटर का इस्तेमाल करेंगे जिसको हम लिख देंगे डेस्ट पी। डेस्ट पी मुझे ये बताएगा कि हम करेंटली इस एरे में किस डेटा पैकेट को पॉइंट कर रहे हैं। ओके, डेस्ट पी विल टेल मी कि फॉर द करेंट डेस्टिनेशन वी आर पॉइंटिंग एट विच वैल्यू इन दिस एरे। ठीक है, ये बेसिकली पॉइंटर होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका डेस्ट जो है, जैसे कि मैंने बताया कि 5 क्या 95, 100 और 105 है, और लेट से आपने अभी कोई रिमूव नहीं किया, आपके करेंटली पूरे पैकेट जो भी आपके 5 डेस्टिनेशन वाले थे वो सारे के सारे प्रेजेंट है, तो आपका डेस्ट ऑफ 5 क्या होगा? आपका डेस्ट ऑफ 5 होगा 0। इसका मतलब आप करंटली 0th इंडेक्स पे पॉइंट कर रहे हो। अब इन केस मान लो अगर अभी आपने 95 वाला पैकेट हटा दिया या फॉरवर्ड करा दिया, उस केस में क्या होगा? आपका जो डेस्टिनेशन वाला क्या कहते हैं, जो मैप है, वो ऐसे के ऐसा ही रहेगा, ठीक है? क्योंकि सिंपल सी बात है, रिमूवल में ऑर्डर एंड टाइम लगता है तो हम वो अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन हम इस पॉइंटर को तो बढ़ा सकते हैं ना, क्योंकि इस पॉइंटर को अगर बढ़ा देंगे तो हमें अपने आप मालूम पड़ जाएगा कि दिस 95 पैकेट इज नो लॉन्गर अ पार्ट ऑफ नो लॉन्गर इन कंसिडरेशन, क्योंकि ये जा चुका है। सो वी कैन जस्ट इंक्रीज द पॉइंटर ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग डेस्टिनेशन। इसको क्या करेंगे, इसको प्लस प्लस कर देंगे, तो हमारा डेस्ट पी जो हो जाएगा, डेस्ट पी ऑफ 5, वो बन जाएगा 1। इसका मतलब कि अब 1 इंडेक्स से जितने आगे के वो हैं डेटा पैकेट्स हैं, सिर्फ उनको देखना है। पीछे वाले जो डेटा पैकेट्स हैं वो रिमूव हो चुके हैं, उनको देखने की जरूरत नहीं है। इन दिस वे यू विल बी एबल टू एफिशिएंटली हैंडल द क्वेरीज फॉर गेट काउंट। अब देखो, हमने प्रॉपर पूरा बेस बना दिया है। अब देखते हैं इसको करेंगे कैसे, ठीक है? मान लो फॉर एग्जांपल मेरे पास एक क्वेरी आती है, मेरे पास एक क्वेरी आती है जैसे कि पहले भी आई थी, 100 से लेके 110 की। ये क्या लिख दिया, 100 से 110 की। ओके, एंड लेट्स से आई हैड 3 पैकेट्स 95। ओके, देन वी हैड 105, एंड देन लेट्स से वी हैड 112, 120 मान लो, 120। ओके, वी कैन सी, और इन सबका टारगेट 5, इन सबका डेस्टिनेशन 5 है और हमारा क्वेरी में भी 5 ही आया है, राइट? सो वी कैन सी द ओनली पॉसिबल आंसर इज बेसिकली दिस पैकेट। सिर्फ ये अकेला पैकेट ही है जो कंसिडरेशन में है, राइट? सो व्हाट डू वी डू, हम करेंगे क्या? सबसे पहले ये देखो कि करंटली कौन कौन सा पैकेट कंसिडरेशन में है, क्या वो पैकेट है भी, ठीक है? वो हमें पता लगेगा किससे? डेस्ट पी से। डेस्ट पी हमको बताएगा कि हम करंटली कौन से पैकेट से स्टार्ट करेंगे, राइट? देखना, लेट्स से कि अभी हमारे पास तीनों पैकेट पूरे पूरे अवेलेबल हैं, तो हमारा डेस्ट पी 95 पे पॉइंट कर रहा होगा, और ये हमारा एंडिंग वेरिएबल है, ये हमारा एंडिंग बेसिकली एंडिंग टाइम स्टैम्प पॉसिबल है, ठीक है? अब बेसिकली आपको स्टार्ट और एंड पता लगाना है। तो स्टार्ट क्या होगा? स्टार्ट बेसिकली वुड बी इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ स्टार्ट टाइम जो आपको दिया हुआ है, कॉमा करंटली आप कहाँ पॉइंट करते हो। करंटली आप देखो टाइम स्टैम्प 95 पे पॉइंट कर रहे हो ना, तो यहाँ पर क्या होएगा? डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन ऑफ डेस्ट पी, ठीक है? ऑफ जो भी आपका डेस्टिनेशन आया है। तो आप क्या कर रहे हो कि बेसिकली ये जो डेस्ट पी वाला एरे है, डेस्ट वाला एरे है, डेस्टिनेशन वाला एरे है, ठीक है? उस मैप में, ठीक है, उसके डेस्ट पीएथ इंडेक्स पे देख रहे हो, जो कि अभी 0 है, राइट? 0th इंडेक्स पे हो, तो आप देख रहे हो कि भाई इसका मैक्सिमम लोगे 95 कमा 100 का मैक्सिमम लोगे। सिंपल सी बात है, इससे आपको पता लगेगा कि 95 को कंसिडर नहीं करना है, ठीक है? ये हमने मैक्सिमम पहले से क्यों लेके रखा है? सर्च डाटा में पता लग जाए कि हमको 95 वाले पैकेट को कंसिडर नहीं करना है, राइट? सो दैट्स व्हाई व्हाट डू वी डू, वी टेक द मैक्सिमम बिटवीन द गिवन स्टार्टिंग टाइम एंड द करेंट जिसपे हम देख रहे हैं, राइट? ऐसा भी हो सकता है कि मान लो इससे कम होता, ठीक है? मान लो फॉर एग्जांपल आपका ये 90 आया होता है, उस केस में 95 भी कंसिडर होता है, उस केस में आपका मैक्सिमम क्या बनता? 95 ही बनता, ठीक है? तो आप देख सकते हो कि हाउ एफिशिएंटली वी आर एबल टू नैरो डाउन अ सर्च, राइट? जैसे 95 और 100 वाला पैकेट था, तो हमको डायरेक्टली सिर्फ 100 वाले, 100 के ऊपर वाले पे फोकस करना था। दैट्स हमने मैक्सिमम ले लिया। इन अ सिमिलर वे, जब हम एंडिंग टाइम की बात कर रहे हैं, तो सिंपल सी बात है, 120 के ऊपर का पैकेट तो कोई है ही नहीं। तो व्हाट शुड वी टेक? वी शुड टेक मिनिमम ऑफ एंड टाइम, कॉमा द लास्ट पैकेट इन
डेस्ट ऑफ, मैं इसको लास्ट लिख देता हूँ। ठीक है, लास्ट आप बेसिकली एरे का साइज निकाल के -1 कर दोगे तो आपको पता लग जाएगा कि वट एवर इज द लास्ट लिमिट। सो इन दिस वे यू विल एबल टू गेट योर करेंट रेंज ऑफ टाइम, मतलब कि आपका जो करंट डेस्टिनेशन मैप है उसमें उस टाइम रेंज में कितने पैकेट्स हैं, ये आपको उससे पता लगा जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी क्वेरी 100 से 110 की आई थी, और हमने जब स्टार्ट लिया तो हमारा स्टार्ट अपडेट होकर क्या बन जाएगा, आर स्टार्ट विल बिकम व्हाट 100 एंड आर एंड विल बिकम व्हाट, सिंपल सी बात है 120 से हमारा 110 कम है, तो इट विल रिमेन व्हाट 110। आप देख सकते हो कुछ चेंज नहीं हुआ वैसे तो, बट इन केस अगर मान लो होता तो आप देख सकते हो चेंज हो जाता। ठीक है, दिस चेंज वुड हैव टेकन प्लेस। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल कल को यहाँ पर सिर्फ 105 होता, ठीक है, यहाँ पर भी लेट से मैं 105 ही लिख दूं, ठीक है, उस केस में भी ऐसा होगा कि भाई आपका 110 की जगह पर यहाँ पर एंड जो होगा वो 105 हो जाएगा 110 की जगह पर, राइट। सो नाउ यू हैव गॉट द स्टार्ट टाइम, यू हैव गॉट द एंड टाइम। आप कुछ नहीं करोगे, आप बस बाइनरी सर्च अप्लाई कर दोगे। रिमेंबर, क्योंकि हमारी टाइम स्टैम्प इंक्रीजिंग ऑर्डर में आते हैं, इसलिए हमारा जो डेस्टिनेशन में जो एरे बनता जा रहा है, ठीक है, वो भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। इट इज ऑलरेडी सॉर्टेड। इसका मतलब आप इजीली बाइनरी सर्च लगा सकते हो। ठीक है, तो आप क्या करोगे, स्टार्ट के लिए आप लोअर बाउंड लगाओ, स्टार्ट के लिए आप लोअर बाउंड लगाओ। लोअर बाउंड क्या करता है, बेसिकली आपको फर्स्ट इंडेक्स देता है जहां पर वो वैल्यू आई है, या फिर उससे जस्ट बड़ा या फिर उससे जस्ट बड़ा वैल्यू आया है, राइट, इन केस अगर वो एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, और एंड के लिए क्या करोगे, एंड के लिए लोगे अपर बाउंड। ठीक है, अपर बाउंड। ठीक है, ये बेसिकली बताता है कि सबसे पहला इंडेक्स जहां पर बिगर वैल्यू आई थी। ये मैंने क्यों किया, ये मैंने ये अपर और लोअर क्यों लिखा है, मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल लेट से हमारे पास लाइक ऐसे क्वेरीज थी 90 90 90 और 100 100। ठीक है, अब आप देख सकते हो लेट से कि ये हमारा एक वैलिड रेंज में आ रहा है। लेट से कि जो हमारा जो स्टार्ट टाइम और एंड टाइम है, जो स्टार्ट और एंड है, वो बेसिकली इस रेंज में फॉल कर रहा है, राइट। ठीक है, सो वी कैन सी कि आवर आंसर शुड बी 5। ठीक है, हमारे पास टोटल 5 पैकेट्स हैं जो हमें रिटर्न करने चाहिए पॉसिबल आंसर में। बट इफ यू डू लोअर बाउंड ऑन बोथ, अब लोअर बाउंड में क्या होगा, स्टार्ट के लिए ये रिटर्न हो जाएगा और एंड के लिए ये रिटर्न हो जाएगा। सो यू कैन सी कि आप ये वाला पैकेट मिस आउट कर रहे हो, ये वाला पैकेट मिस आउट कर रहे हो। सो इन ऑर्डर दैट यू डू नॉट मिस आउट दिस पैकेट, आप एक अपर बाउंड ले लेते हो सच दैट कि आप इसके बाद लेट से 110 आया होता, तो वहां पर कहता है कि अच्छा ये आपका अपर बाउंड है। इन दिस वे यू विल बी एबल टू काउंट ऑल दीज पैकेट्स, राइट। आप ये सारे पैकेट्स देख पाओगे। सो कुछ नहीं करोगे, सबसे पहले स्टार्टिंग का इंडेक्स, स्टार्ट का लोअर बाउंड निकालोगे, तो बेसिकली आपको एक इंडेक्स रिटर्न करेगा, इसको मान लेते हैं IDX1। एंड का अपर बाउंड आएगा, उसको कहते हैं IDX2। यू जस्ट हैव टू रिटर्न IDX2 माइनस IDX1, और ये आपका बता देगा द करेंट काउंट ऑफ पैकेट्स विच हैव अ टारगेट डेस्टिनेशन डेस्ट lying in the range start time comma end time. In this way you will be able to implement all these three functions. So if you are not able to get anything, just rewind the video and एक बार फिर से स्टार्टिंग से उसको एक बार देख लो, आपको समझ में आ जाएगा कि हाउ दिस अप्रोच इज वर्किंग, राइट। कुछ नहीं किया है, बस एक मैप बनाया है जो कि स्टोर करा रहा है टाइम स्टैम्प अकॉर्डिंग डेस्टिनेशन। और क्योंकि मुझे रिमूव ना करना पड़े खुद, इंडिविजुअली मुझे खुद ना रिमूव करना पड़े, क्योंकि रिमूवल में टाइम लगता है, एरे टेक्स ऑर्डर एन फॉर रिमूवल, राइट। सो उसको आसान करने के लिए मैंने फिर से एक पॉइंटर वेरिएबल बना लिया। उसके लिए मैंने एक मैप बना लिया जो कि मेरे करंट डेस्टिनेशन का पॉइंटर हैंडल कर रहा है। ठीक है, तो कुछ नहीं किया, आप देख लो स्लाइडिंग विंडो लग रही थी, मैप डेटा स्ट्रक्चर यूज किया है, और कुछ नहीं यूज किया है। द वेरी बेसिक डेटा स्ट्रक्चर आर गोइंग टू यूज, और पॉइंटर और पॉइंटर, जो कि आपको अच्छे से पता है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, राइट। नाउ लेट्स लुक एट द कोड, लेट्स लुक एट द कोड। ओके, सबसे पहले क्या किया है, you can see we have declared a t array. This is basically for storing a timestamp. Then we have a present array, basically this will return की duplicate है कि नहीं, तो उसमें स्टोर कराएंगे। Then we have info array, info vector जो कि आपका सोर्स और डेस्टिनेशन स्टोर कराता जाएगा। ठीक है, पैरेलली। देन वी हैव द डस्ट एरे, राइट। ये देखो, ये स्टोर कराएगा आपका की और उसके कॉरस्पॉन्डिंग टाइम स्टैम्प की कौन कौन से वो पैकेट्स है जिनका करंट डेस्टिनेशन जो है वो टारगेट में है, और उसके क्या कौन कौन से टाइम स्टैम्प पे वो प्रेजेंट है, राइट। एंड देन वी हैव द डेस्टिनेशन पॉइंटर्स, जिससे हम उसके पॉइंट्स को हैंडल करेंगे कि ये रिमूव हुआ तो आगे बढ़ा दो, राइट। देन वी इनिशियलाइज टू वेरिएबल्स, दैट इज फर्स्ट द लिमिट, जो कि आपका बेसिकली लिमिट देखा कि राउटर में उतनी जगह है। देन वी हैव अ आइटरेटर वेरिएबल, जो कि बेसिकली मेरे ये टी और इन्फो पे काम करेगा कि मुझे करंटली किस डेटा पैकेट को देखना चाहिए फॉरवर्ड करते वक्त या रिमूवल करते वक्त, राइट। सो इनिशियलाइज कर लिया। देन वी हैव ऐड पैकेट्स, फर्स्ट वी चेक डुप्लीकेट है, इफ इट्स नॉट अ डुप्लीकेट, इफ इट्स अ डुप्लीकेट देन वी रिटर्न फॉल्स। एल्स व्हाट डू वी डू, फर्स्ट वी चेक कि हमारे पास ऐसा तो नहीं कि ऑलरेडी वो लिमिट रीच हो चुकी है। इन केस वी हैव ऑलरेडी रीच द लिमिट, कि अगर ये जो टी डॉट साइज है और जो करंट आई है, इसका मतलब वो विंडो जो है, अगर उसका ऑलरेडी साइज लिमिट के बराबर हो चुका है, इसका मतलब आपके पास पहले से उतने इनफ पैकेट्स हैं, तो हमको किसी पैकेट को रिमूव करना पड़ेगा। सो जो लास्ट पैकेट है, ठीक है, वो बेसिकली डायरेक्टली आपको ith पॉइंट पे मिल जाएगा। सो यू जस्ट इरेज दैट पैकेट, और आप उसका करस्पॉन्डिंग जो पॉइंटर है, याद रखो, देखो अब हमें याद है ना डेस्टिनेशन में हमें हमने स्टोर कर रखा था, राइट। तो अब सिंपल सी बात है, उस एरे को रिमूव नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, उस करस्पॉन्डिंग डेस्टिनेशन का पॉइंटर बढ़ा देंगे। तो क्या किया, P(1) बढ़ा दिया, यहाँ info सेकंड जो था वो बेसिकली डेस्टिनेशन था, तो हमने इसका पॉइंटर इंक्रीज कर दिया और आई को भी प्लस प्लस कर दिया कि अब ये वाला पैकेट हट चुका है, अब आगे देखो। ठीक है, नाउ व्हाट डू वी डू,
वी जस्ट पुश बैक द टाइम स्टैम्प, ठीक है। उसके बाद वी स्टोर द न्यू पैकेट कि भाई ये प्रेजेंट हो चुका है, इसका प्रेजेंस अब हमारे राउटर में है। फिर इसका इन्फो पुश करा देते हैं। एट द सेम टाइम हमारे डेस्टिनेशन वाले मैप में भी इस टाइम स्टैम्प को पुश करा देंगे क्योंकि नया पैकेट ऐड हुआ है एंड में, एंड वील जस्ट रिटर्न ट्रू। ये हो गया हमारा ऐड पैकेट वाला पार्ट। फिर फॉरवर्ड पैकेट में क्या करना है, सिंपल सी बात है, अगर आई और टी डॉट साइज बराबर हो चुका है, इसका मतलब आपका जो पॉइंटर है आई, ठीक है, वो एंड पे है, इसका मतलब कोई भी पैकेट अभी राउटर में है ही नहीं और आपका पैकेट, आपका राउटर खाली है। दिस मीन्स एम्प्टी एरे रिटर्न कर दिया। इन केस अगर ये नहीं है, वी गेट द फर्स्ट पैकेट जो भी हमारा सबसे ओल्डेस्ट पैकेट है, राइट। तो आप देख सकते हो जस्ट बाय यूजिंग पॉइंटर एंड सिंपल एरे, आपने ये दोनों क्वेरीज, ये देख लो, ये जो बूल ऐड पैकेट वाली क्वेरी थी और जो फॉरवर्ड पैकेट वाली क्वेरी थी, ये दोनों की दोनों अपने ऑर्डर वन में परफॉर्म करी है, राइट। रिमेंबर, आपने ऐड पैकेट वाली भी ऑर्डर वन में करी है और आपने फॉरवर्ड पैकेट वाली भी ऑर्डर वन में करी है। here I am actually not considering the time complexity that is taken up in erasing, ठीक है। जब आप किसी भी चीज को, किसी भी एलिमेंट को पुश करते हो किसी मैप में, तो ये जनरली टेक्स लॉग इन टाइम, ठीक है, पर हम उसको भी कंसिडर नहीं कर रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी दैट इज नॉट वेरी सिग्निफिकेंट, ठीक है, वो भी बहुत कम छोटी ही होती है क्योंकि जनरली हम रिमूव एड सब कर रहे हैं, तो इट नॉट बी बिग, बट स्टिल आप बोल सकते हो अगर आपका मन करे तो दैट बेसिकली रिमूवल इन मैप टेक्स लॉग इन टाइम, क्योंकि जो मैप्स होते हैं ना, वो बेसिकली बैकएंड में इंप्लीमेंट होते हैं इन फॉर्म ऑफ रेड ब्लैक ट्रीज। अगर आपने रेड ब्लैक ट्रीज पढ़ रखे हो, बैलेंस बाइनरी सर्च ट्रीज, तो यू विल नो कि इनमें जनरली लॉगिन इंसर्शन, लॉगिन रिमूवल लगता है, ठीक है, और लॉगिन क्वेरी में भी जाता है, राइट। सो बेसिकली इस तरीके से हम क्या करते हैं कि वी रिमूव द लास्ट पैकेट दैट इज द ओल्डेस्ट पैकेट, एंड वी अगेन इंक्रीज द पॉइंटर, क्योंकि सिंपल सी बात है, इसको हमें डेस्टिनेशन वाले मैप से भी रिमूव करना है कि पैकेट अब गया, एंड देन वी रिमूव दिस पैकेट फ्रॉम द प्रेजेंट मैप एज वेल कि अभी पैकेट इज नो लॉन्गर पार्ट ऑफ द राउटर, एंड वी इंक्रीज our iterator वेरिएबल एंड वी रिटर्न दैट पैकेट p। नाउ वी गो टू द गेट काउंट फंक्शन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमने निकाल लिया कि हमारा अभी करेंटली हम डेस्टिनेशन वाले मैप में किस इंडेक्स पे पॉइंट कर रहे हैं, ठीक है, जैसे हमने दिखाया था 9500 वाला, तो हम करेंटली किस इंडेक्स पे पॉइंट कर रहे हैं, उसके प्रीवियस जितने भी इंडेक्सेस होंगे, इसका मतलब है कि वो सबके सब या तो डेटा पैकेट्स जा चुके हैं, या तो रिमूव हुए हैं, या तो फॉरवर्ड किए जा चुके हैं। तो जेथ इंडेक्स के पहले पहले जितने भी पैकेट्स थे करंट डेस्टिनेशन के साथ वाले, उन सबको हम कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। दैट्स व्हाई वी गेट दिस पॉइंटर, एंड वी आल्सो गेट द साइज ऑफ द करंट डेस्टिनेशन की कितने टोटल पैकेट्स हैं अभी, राइट, ताकि हमें पता लग जाए कि एंड वाला पैकेट जो है उसका टाइम स्टैम्प क्या है। देन वी चेक इफ जे इज एम, इसका मतलब सिंपल सी बात है कि सारे पैकेट्स ऑलरेडी हम देख चुके हैं, ठीक है, अभी ये खाली है, कोई भी ऐसा पैकेट नहीं है जो कि करंट डेस्टिनेशन के साथ वाला हो, तो हम डायरेक्टली विल रिटर्न जीरो। देन वी गेट द स्टार्ट। तो स्टार्ट जैसे कि एज आई सेड कि यू टेक मैक्स ऑफ स्टार्ट टाइम एंड डेस्टिनेशन ऑफ जे, जो भी करंट हमारा पॉइंटर है आप उसको देखते हो, ठीक है। सो हमने 95 ऑलरेडी लिया था क्योंकि वहां पर जीरो इंडेक्स पे था। इन केस अगर 95 रिमूव हो चुका है, देन वी ओनली नीड टू कंसिडर व्हाट पैकेट्स जो कि 95 से ऊपर वाले हैं, तो हम उसका नेक्स्ट पॉइंटर पे जो भी प्रेजेंट है वो उसको देखेंगे, राइट, कि जो जो अभी हमारे करंट कंसिडरेशन में है। एंड सिमिलर वे यू गेट द लास्ट एलिमेंट टू चेक विद द एंड टाइम। आपको स्टार्ट और एंड मिल चुका है। इन केस आपका स्टार्ट इज बिगर देन एंड, दिस मींस दिस आल्सो मेक्स नो सेंस, यू रिटर्न जीरो। देन यू गेट द लोअर बाउंड, यू गेट द लोअर बाउंड। आप यहाँ पर देख सकते हो मैंने प्लस जे किया है। दिस प्लस जे बेसिकली सेइंग कि आपको जब आपका बाइनरी सर्च अप्लाई करना है, दैट यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम जेथ इंडेक्स। आप जनरली बाइनरी सर्च अप्लाई करते हो तो जीरो इंडेक्स से लेके एन माइनस वन इंडेक्स पे लगाते हो, राइट। पर यहाँ पर हमको पता है कि जे से पहले वाले जितने पैकेट्स हैं वो अब किसी भी यूज के नहीं, क्योंकि वो या तो रिमूव हो चुके हैं या तो फॉरवर्ड हो चुके हैं, राइट। सो दिस मीन्स कि हमें अपना बाइनरी सर्च जो अप्लाई करना है दैट शुड स्टार्ट फ्रॉम जेथ इंडेक्स। दैट्स व्हाई लोअर बाउंड और अपर बाउंड दोनों का दोनों जेथ इंडेक्स से स्टार्ट होगा और कहां तक जाएगा, एंड तक जाएगा, राइट, ठीक है। एंड इन दिस वे वी गेट idx1, वी गेट idx2, एंड वी सिंपली रिटर्न द डिफरेंस टू गेट द काउंट। सो दिस बेसिकली हाउ यू सॉल्व प्रॉब्लम नंबर 2। आई होप आपको समझ में आया होगा। ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की अगर बात करें, सो एड पैकेट टेक्स ऑर्डर वन टाइम, फॉरवर्ड पैकेट टेक्स ऑर्डर वन टाइम, एंड गेट काउंट ऑल्सो टेक्स, गेट काउंट बेसिकली टेक्स लॉग इन टाइम, ठीक है। बेसिकली वो डिपेंड्स अपॉन द कितने पैकेट्स हैं। सो आई वुड से स्टिल अगर मान लो क्यू नंबर ऑफ क्वेरीज भी आती हैं, और मान लो सारी की सारी क्वेरीज अगर गेट काउंट वाली हैं, देन टू यू विल टेक ओनली अराउंड क्यू इनटू लॉग इन, और आई वुड से या इट वुड बी एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम इन अ वेरी एफिशिएंट वे, ठीक है। एंड दिस बेसिकली हाउ वी विल डू दिस प्रॉब्लम। Now we'll move forward to problem number 3. Okay, so now let's start with problem number 3. Okay, yeah. So now to be honest, this question was very frustrating. ये मेरा honest opinion है, because when I was solving this problem, to be honest, constraints were not very clear. ठीक है, और दिस इज एक्चुअली काइंड ऑफ मोर मैथमेटिकल बेस्ड। इसमें आपका मैथमेटिकल फाउंडेशन काफी स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है, टू अंडरस्टैंड व्हाई हाउ सम अप्रोच विल वर्क एंड हाउ विल समथिंग वर्क, और क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पास हो जाएगी, राइट। सो आई मीन बेसिकली ये टाइम वेस्ट के लिए बनाया गया था क्वेश्चन कि आपका टाइम वेस्ट हो, राइट। एंड एट द सेम टाइम इट इज नॉट टफ प्रॉब्लम, इट्स नॉट लाइक कि भाई बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है, बट एट द सेम टाइम इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि आखिर लॉजिक क्या है, देन इट्स एक्चुअली वेरी सिंपल क्वेश्चन। टू बी ऑनेस्ट बहुत सिंपल नैपसैक बेस्ड प्रॉब्लम है, टेक और नो टेक प्रॉब्लम ये है, ठीक है, बहुत डिफिकल्ट भी नहीं है, बट स्टिल आपका टाइम वेस्ट होता है फॉर बिकॉज ऑफ सॉल्विंग ऑफ द अंडरलाइंग मैथमेटिक्स। उसकी वजह से इसमें थोड़ा टाइम वेस्ट होगा आपका, बट स्टिल आई डोंट नो कि
क्यों बनाया ये क्वेश्चन, इसकी जगह कुछ अच्छा बना सकते थे, बट या आई वुड से कि दिस वाज एक्चुअली अ हार्ड प्रॉब्लम टू सॉल्व just because of the constraints. Rest, the problem logic is very easy to derive. The only thing is the constraints were very hard. It was not very clear कि आप टाइम लिमिट क्या रखी है आपने सोल्यूशन के लिए, दैट वाज नॉट वेरी क्लियर. आई हैव सीन कि मैंने बहुत लोग ऐसे भी सोल्यूशन देखे कि वो पास हो गए जबकि इट शुड नॉट हैव पास्ड. इवन आई हैव सीन द टेस्ट केसेस आर आल्सो वेरी वीक. इस प्रॉब्लम के लिए स्पेसिफिक टेस्ट केसेस भी काफी वीक बनाए गए हैं, राइट. सो ओवरऑल आई वुड से कि दिस प्रॉब्लम इज नॉट दैट वर्थ इट, राइट, बट स्टिल क्योंकि कॉन्टेस्ट में था तो उसको सॉल्व तो करना ही है. Right, so let's dive into the problem. What is the problem? The problem says uh, maximum product of subsequences with an alternating sum equal to k. Right, so directly question का जो meaning है वो directly question के title में ही पूरा present है. Right, it's a hard question. So you are given an integer array nums and two integers k and limit. Your task is to find a non-empty subsequence of nums that has an alternating sum equal to k and maximizes the product of all its numbers without product exceeding the limit. So basically आपके पास एक इंटीजर अरे नम्स है और दो इंटीजर के और लिमिट दिए गए हैं और आपको एक ऐसा सबसीक्वेंस फाइंड करना है सच दैट उसका अल्टरनेटिंग सम के हो एंड सच दैट उसमें जो जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबका प्रोडक्ट जो है दैट इज बीइंग मैक्सिमाइज एट द सेम टाइम द प्रोडक्ट शुड नॉट एक्सीड द वैल्यू लिमिट. जो लिमिट हमने दे रखा है वेरिएबल उसको एक्सीड नहीं करना चाहिए. ठीक है. इफ देयर इज नो सबसीक्वेंस देन यू हैव टू रिटर्न -1 एंड व्हाट यू हैव टू रिटर्न, यू हैव टू रिटर्न द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स दैट इज पॉसिबल. तो आपको बेसिकली यहाँ पर मैक्सिमम प्रोडक्ट बोला है रिटर्न करने के लिए सच दैट इट डज नॉट एक्सीड द लिमिट. Alternating sum क्या होता है? The alternating sum of a zero index array is defined as the sum of elements at even indices minus the sum of the elements at odd indices. ठीक है. कंफ्यूजिंग नहीं, सिंपल है. सिंपल सी बात है कि जितने भी 0, 2, 4, 6, 8 इन सब इंडेक्सेस पे जो नंबर्स है वो ऐड हो रहे हैं और जो भी 1, 3, 5, 7, 9 इन इंडेक्सेस पे हैं वो सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं. इट्स बेसिकली लाइक प्लस A1 इट्स लाइक प्लस A0 माइनस A1 प्लस A2 माइनस A3 प्लस A4 माइनस A5, इस तरीके से. दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड अल्टरनेटिंग सम, राइट. तो हमें ऐसा सीक्वेंस पता करना है जिसका अल्टरनेटिंग सम जो है वो बेसिकली k के बराबर है और इट शुड मैक्सिमाइज द प्रोडक्ट. ओके, नाउ लेट्स गो टू द फर्स्ट टेस्ट केस. फर्स्ट टेस्ट केस आता है हमारा 1 2 3, k is 2 and limit is 10. तो बेसिकली हमें k इक्वल टू 2 चाहिए. डायरेक्टली लेट्स वी कैन सी कि अगर मैं 1 2 3 पूरा ही ले लूं, अगर मैं पूरा का पूरा ले लूं, व्हाट आई कैन सी +1 -2 +3. दिस इज बेसिकली 4 -2 एंड 4 -2 इज 2. तो हम देख सकते हैं हमारे इस सबसीक्वेंस का अल्टरनेटिंग सम क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, राइट. एंड इनका प्रोडक्ट क्या है, इसका प्रोडक्ट है 1 × 2 × 3 एंड दैट इज 6 एंड दैट इज लेस देन 10. इसका मतलब 6 शुड बी द आंसर बाय, क्योंकि यही हमारा मैक्सिमम पॉसिबल प्रोडक्ट है, इसके ऊपर हो भी नहीं सकता. ठीक है. Then we go to so we can see कि आंसर 6 है. In similar way we can go to what the second test के 0 2 3 है, k -5 है, लिमिट 12 है, राइट. सो अगर आप इन नंबर्स को किसी भी तरह से अरेंज कर लो, you will see you would never be able to get an alternating sum -5. That's why the answer is -1. Similarly we go to 2 2 3 2 2 3 3, k is 0, limit is 9. So you can see आप कौन कौन से ले सकते हो सबसेट. 2 2 ले सकते हो क्योंकि 2 - 2 0 होता है. 3 - 3 भी ले सकते हो. आप 2 2 3 3 भी ले सकते हो. Why? 2 - 2 plus 3 - 3 is also 0. But 2 × 2 × 3 × 3 basically 9 × 4 36 होता है and that exceeds the limit value. इसलिए आप इस पूरे सबसेट को नहीं ले पाओगे, राइट. यू हैव टू कंसिडर आइदर 2 2 और 3 3 क्योंकि इसके अलावा तो कोई अल्टरनेटिव सम 0 नहीं दे रहा है, राइट. सो सिंपल सी बात है, इससे हमारा प्रोडक्ट मैक्सिमाइज हो जाएगा. सो विल टेक 3 - 3 एंड द मैक्सिमम प्रोडक्ट इज व्हाट 3 × 3 9. सो ये बेसिकली हमारा कवर अप करता है हमारा एग्जांपल पार्ट. देन वी लुक एट द कंस्ट्रेंट्स. व्हाट आर द कंस्ट्रेंट? 150 हमारा एरे साइज है मैक्सिमम. द नंबर इनसाइड द एरे कैन रेंज फ्रॉम 0 to 12. देन वी हैव -10^5 to 10^5 एज वैल्यू ऑफ k एंड द लिमिट वैल्यूज बिटवीन फ्रॉम 1 to 5000. ठीक है. अब सबसे पहले नोट करने वाली बात है कि k हमारा पॉसिबल हो भी सकता है सिंस वी आर गोइंग टू टेक अल्टरनेटिंग सम्स, राइट, कि एक जगह प्लस है फिर माइनस है. ठीक है. तो ट्राई टू थिंक, आप एक बार सोच के देखो कि व्हाट इज द मैक्सिमम सम यू कैन गेट. ठीक है. अब एक इंडेक्स पे हम प्लस कर रहे हैं, एक इंडेक्स पे माइनस कर रहे हैं, तो आप ये बताओ, खुद सोचो कि व्हाट इज द मैक्सिमम सम यू कैन गेट. ठीक है. मैक्सिमम सम अगर आप देखोगे तो क्या हो सकता है, मैक्सिमम नंबर 12 एरे में हो सकता है, राइट. सो अगर 12 सारे इवन इंडेक्सेस पे हो और हर एक और इंडेक्स पे 0 हो तो आपका मैक्सिमम के पॉसिबल है, मैक्सिमम सम तभी आएगा, राइट, क्योंकि बाकी सब पे तो माइनस हो रहा है, राइट. तो -0 वुड बी द बेस्ट चॉइस. तो उस केस में आधे एलिमेंट 12 होंगे, आधे एलिमेंट 0 होंगे. दिस मीन्स द मैक्सिमम सम दैट वी कैन गेट इज व्हाट, इट शुड बी अराउंड व्हाट 12 into 75. इट शुड बी 12 into 75. और अगर आप 12 into 75 करोगे तो इट इज अराउंड व्हाट, इट इज अराउंड 900. तो आपका मैक्सिमम अल्टरनेटिंग सम जो है वो 900 के ऊपर कभी होगा ही नहीं, वो कभी हो ही नहीं सकता, राइट. बट टू बी ऑन द सेफ साइड, क्योंकि हम सबका सम लेने वाले हैं, टू बी ऑन द सेफ साइड हम ये मान के चलेंगे, हम सबका सबका सम लेके चलते हैं. लेट्स से कि पूरा एरे का एरे जो है वो तुम्हारा पूरा ही 12 से भरा हुआ है. द मैक्सिमम सम पॉसिबल इज व्हाट 12 into 150 जो कि अराउंड 1800 होता है. तो इसका मतलब आप कह सकते हो कि योर के शुड आइदर बी यू नो लेस देन इक्वल टू 1800
राइट, और इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू -1800। सिंपल सी बात है कि -1800 के ऊपर अगर आप जाओगे, मतलब उसके नीचे जाओगे, तब भी आपका सम पॉसिबल नहीं हो पाएगा अल्टरनेटिंग सम, और अगर आप 1800 के ऊपर जाओगे तब भी आपका सम पॉसिबल नहीं। तो इट्स लाइक अ पार्टीशन इन बिटवीन। सब उसको डायरेक्टली चेक कर सकते हो एबीएस वैल्यू चेक करके कि अगर आपकी एबीएस वैल्यू जो के की है वो 1800 को क्रॉस कर रही है, दिस मीन्स कि आपका आंसर कभी आ ही नहीं सकता, दैट इज ऑलरेडी नॉट पॉसिबल। राइट। प्रॉब्लम आती है प्रोडक्ट और ये सम का ट्रेड ऑफ निकालने में, कि लेट से आपके पास ये एलिमेंट्स हैं, व्हाट आर द पॉसिबल प्रोडक्ट्स क्या क्या पॉसिबल हैं, और सिमिलरली प्रोडक्ट व्हाट आर द पॉसिबल सम्स क्या पॉसिबल हैं। इसमें ना ट्रेड ऑफ चलता है। लेट से कि अगर सारे 12 हैं, सिंपल सी बात है, अगर आपको 5000 को एक्सीड नहीं करना है ना, तो आप 12 को सिर्फ 3 बार मल्टीप्लाई कर सकते हो। राइट। या सिमिलर वे इफ यू गो फॉर 11, कि अगर सारे 11 के 11 भरे हुए होंगे, तो 11 को अगर आप सिर्फ 3 बार मल्टीप्लाई कर सकते हो बिफोर यू एक्सीड 5000। इन सिमिलर वे इफ यू गेट 2, अगर आपके पास 2 आता है, तो 2 को आप अराउंड 12 या 13 टाइम्स, अराउंड आई थिंक 4096 के ऊपर आप नहीं जा सकते। तो ये अराउंड 2 की पावर 12 जो है, इसका मतलब 12 बार आप 2 को मल्टीप्लाई कर सकते हो और उसके ऊपर नहीं जा सकते हो। इसका मतलब कि सबके सब जो प्रोडक्ट है ना, दैट आर एक्चुअली कंस्ट्रेंट बाय आप कितने ले सकते हो, आप सबसेट में कितने नंबर्स को इंक्लूड कर सकते हो। लेट से अगर 1 है, तो 1 का तो कोई सेंस ही नहीं भाई, 1 तो सिंपल सी बात है कितनी भी बार मल्टीप्लाई कर लो, दैट विल नॉट मेक सेंस। और 1 अगर जहां पर भी आ रहा है वो सम में भी उतना मतलब इतना इफेक्ट नहीं डालता है, ऑल्दो इट डज। ठीक है, तो बेसिकली आप एक के का बाउंड मिल गया। ठीक है, ये जो ट्रेड ऑफ वाला प्रॉब्लम है ना, मैक्सिमम students or maximum people who have given the contest and have tried to solve this problem were actually stuck on this thought कि भाई ये प्रोडक्ट और सम का ट्रेड ऑफ क्या है। अगर मैं डायरेक्टली अगर सम को देखूं, ठीक है, अगर सम अगर मान लेट से मैं 1800 पे भी ले आता हूँ, ठीक है, 1800 मतलब 2000 के अराउंड भी ले आता हूँ, और ये भी मेरा 5000 है। इफ यू ओनली मेक अ डीपी एरे ऑफ 5000 इंटू 2000, इट्स स्टिल 10 टू द पावर ऑफ 7। वो ऑलरेडी आपका बहुत बड़ा हो चुका है। ठीक है, आप तब भी नहीं कर पाओगे। यहीं पर हमारा प्रॉब्लम आता है कि भाई हमको क्या लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, और मोस्ट ऑफ द पीपल वेस्टेड देयर टाइम इन डिराइविंग आउट कि भाई कैसे बनाएं। यहाँ पर एक क्लेवर टेक्निक ये होती है कि जनरली इफ यू सी कि यू हैव वेरी बिग कंस्ट्रेंट्स, आपके कंस्ट्रेंट्स बहुत बड़े हैं, ठीक है, सच दैट आपको पता है कि आप डायरेक्टली एरे नहीं बना सकते हो। ऐसे प्रॉब्लम्स में जनरली ऐसा होता है कि योर नंबर ऑफ सोल्यूशंस आर वेरी लेस। ठीक है, आपका रेंज बहुत बड़ा होता है, बट द एक्चुअल नंबर ऑफ सोल्यूशन आर वेरी लेस। ठीक है, वो बहुत कम होते हैं। इसलिए हर एक स्टेट को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत हाई पॉसिबिलिटी है कि वो स्टेट कभी एनकाउंटर ही नहीं हुआ होगा। इन सच केस अगर आप डीपीआरए बनाते हो, तो वहां पर आपकी वो मेमोरी वेस्ट हो रही है, एट द सेम टाइम वो आपको मेमोरी लिमिट एक्सीड करा देगा। तो आप क्या करोगे, ऐसे केसेस में डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर्स लो, जो कि स्पेसिफिकली सिर्फ एक ही चीज को स्टोर करते हैं। मतलब जहां पर आप करेंटली सिर्फ मान लो आपको पता है कि आप ये स्टेट एनकाउंटर करोगे, तो आप उसी स्टेट को सेव कराओ। आपको पता है ये वाला स्टेट आपको एनकाउंटर कभी भी नहीं करना पड़ेगा, तो उसको सेव मत कराओ। ऐसे केस में आप चाहे तो एक हैश टेबल यूज कर सकते हो, एक हैश मैप यूज कर सकते हो, अपसेट यूज कर सकते हो, आपकी जो भी मर्जी आप यूज कर सकते हो, बट इट शुड बी अ डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर। राइट। इसको आप एरे से भी कर सकते हो, बट आई एम स्टिल नॉट श्योर कि भाई लोगों ने कैसे इसको एरे से किया है। द कंस्ट्रेंट्स आर स्टिल वेरी हार्ड, एंड आई वुड से कि टेस्ट केसेस वर वेरी वीक। अगर जिन्होंने एरे के साथ में भी इसको पास करा लिया है, टू बी ऑनेस्ट, अगर अभी एक अच्छा टेस्ट केस बना दिया जाए, योर सोल्यूशन वुड कंप्लीटली फेल, क्योंकि इसका इसका जो कंस्ट्रेंट्स है ना, इसका जो प्रॉब्लम सेटअप है, वही एक्चुअली बहुत कंफ्यूजिंग है। ठीक है, जब कंस्ट्रेंट्स निकालने की कोशिश करोगे, यू विल सी कि आप एक एग्जैक्ट सोल्यूशन में कभी लैंड अप नहीं कर पाओगे, कि आपको कितना साइज का एरे बनाना चाहिए, क्या करना चाहिए, एक अपर बाउंड क्या रखना चाहिए। बेसिकली जब भी आप कोई डीपी एरे बनाते हो ना, तो आप हर एक स्टेट के लिए हर एक वेरिएबल जो आप लेते हो, उसके लिए एक अपर बाउंड लेकर चलते हो कि अच्छा ये वैल्यू तो एक्सीड नहीं करेगा। राइट। तो इन सिमिलर वे इसमें वो चीज आप कैलकुलेट नहीं कर पा रहे होगे इजीली, और उसी में मैक्सिमम टाइम गया। तो यहीं पर हम फायदा उठा सकते हैं, लाइक समथिंग लाइक अ मैप, एज आई सेड। सो करना कुछ नहीं है, इट्स अगेन अ टेक एंड नो टेक, क्योंकि हमें सबसेट निकालने हैं। सबसेट का बेसिकली मतलब ही होता है कि आप किसी एलिमेंट को चूज करोगे या तो नहीं करोगे। सो इट्स सेम लाइक 0 1 नैपसैक। तो आप देखोगे, अगर कोड भी देखोगे ना, इट्स बेसिकली 0 1 नैपसैक। ठीक है, यहाँ पर देखो, एक बार हमने लिया है सम को, एक बार नहीं लिया है। इट्स सेम एज दैट। सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले सम निकाला। ठीक है, चेक कर लिया कि अगर सम जो है आपका टोटल सम जो है, इफ इट इज लेस देन एबीएस ऑफ के, अगर सब सारे एलिमेंट्स का सम मिला के भी अगर के से कम पड़ रहा है, इसका मतलब ऑलरेडी आपका आंसर एग्जिस्ट नहीं करता है। इन केस अगर अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती, देन वील फॉरवर्ड प्रोसीड फॉरवर्ड टू सॉल्व द प्रॉब्लम। तब सबसे पहले हम एक मैप बना लेते हैं, अनऑर्डर्ड मैप, जिसमें हमारा जो की होगा वो स्ट्रिंग होगा, और उसकी जो वैल्यू होगी वो इंटीजर टाइप की होगी, जो कि बेसिकली हमारा आंसर स्टोर करने वाली है। एंड देन बेसिकली रन दिस फंक्शन। ठीक है, यहाँ पर आप बहुत सारे वेरिएबल देख रहे होगे, एन की लिमिट आप जान गए होगे। ये 0 बेसिकली सम के लिए है। राइट, आई थिंक नो, दिस बेसिकली फॉर आई, कि आप हर एक इंडेक्स पे जाओगे। दिस बेसिकली सम वेरिएबल, ये आपका हो गया प्रोडक्ट वेरिएबल। ठीक है, उसके बाद ये आपका आ गया साइन वेरिएबल। ठीक है, ये बेसिकली बताता है कि आपको पॉजिटिव लेना है कि नेगेटिव लेना है। ठीक है, कि आपको प्लस करना है उस इंडेक्स की वैल्यू को, या माइनस करना है, उसके लिए है। एंड देन वी हैव दिस एम्प्टी नॉन एम्प्टी, ये बताएगा बेसिकली कि आपका जो करंट सबसेट है अभी वो एम्प्टी है कि नॉन एम्प्टी है। ये पर्टिकुलर वेरिएबल सिर्फ इस वजह से इंट्रोड्यूस किया मैंने, बिकॉज इट इज पॉसिबल कि आपका अल्टरनेटिंग सम लेट से के इक्वल टू 0 दिया हो। राइट।
और इनिशियली आप जो एस लेते हो ना, इनिशियली आप सम जो लेके चलते हो वो भी जीरो लेके चलते हो, तो इट इज पॉसिबल कि आपने अभी अपने सबसेट में किसी एलिमेंट को इंक्लूड भी नहीं किया है, पर फिर भी सम जीरो आ रहा है, राइट? ऐसे केस में आपका आंसर ऑलरेडी आपको मिल जाएगा, बट स्टिल यू नो कि दैट आंसर इज नॉट वैलिड। दैट इज वाई वी इंट्रोड्यूस दिस वेरिएबल कि आप चेक करो कि वो एम्प्टी है कि नॉन एम्प्टी है, ठीक है? अगर नॉन एम्प्टी है तो उसको वैलिड मत मानो, ठीक है? नाउ व्हाट डू वी डू? वी डायरेक्टली गो, ये सिंपल सी बात है, अगर आप एंड पे पहुंच चुके हो डायरेक्टली देखो कि अगर आपका सम अगर के बराबर है, अल्टरनेटिंग सम सिंपल सी बात है के बराबर है, एंड योर प्रोडक्ट इज लेस देन इक्वल टू लिमिट एंड इट इज नॉन एम्प्टी, ओके? एम्प्टी अगर वन है तो बेसिकली एम्प्टी जीरो का मतलब होता है कि अभी खाली है सबसे, और एम्प्टी वन का मतलब होता है कि अभी नहीं, अब उसमें कुछ है, राइट? सो रिटर्न द प्रोडक्ट। इन केस दिस कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड, you return -1, this means कि भाई आंसर इज नॉट वैलिड, it is not possible. Then basically here is the part that will save you that DP array problem. Instead of creating a four-dimensional DP array or something of that sort and wasting memory, what do? I compress all my information into a unique string key. यहाँ पर आप हैश यूज कर सकते हो, बेसिकली आपकी मर्जी है, यू कैन क्रिएट दिस कन्वर्ट दिस स्ट्रिंग इनटू अ हैश वैल्यू, बट उसकी जरूरत नहीं है। What you will do, we'll convert all these state variables, that is I, sum, product, p and empty. All these variables are actually defining my state, right? ये पांचों के पांचों वेरिएबल डिफाइन करते हैं। So what I'll do, I'll just convert all these integer variables into a single string की। क्या करते हो आप? सबसे पहले कन्वर्ट कर लेते हो I को, और एक स्लैश, ये स्लैश तो डाला है, ये स्लैश बेसिकली डिनोट्स कि अच्छा ये पार्टीशन के लिए है, राइट? क्योंकि ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि भाई प्रोडक्ट की जो डिजिट है वो सम के साथ मिलके डुप्लीकेट की बना दे, राइट? तो भाई दो अलग अलग स्टेट है पर फिर भी उनकी की सेम हो जाएगी, राइट? दैट इज वाई टू इंट्रोड्यूस दिस पार्टीशन कि भाई ये स्पेसिफिक अलग अलग रहे, कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, कोई कोलिजन ना हो, दैट्स वाई वी सेपरेट ईच ऑफ दीज वैल्यूज बाय अ हैश, राइट? सो सबसे पहले क्या किया, इसको कन्वर्ट कर लिया स्ट्रिंग में, सिमिलर में सम को कर लिया, देख लिया कि नेगेटिव है पॉजिटिव है, अगर नेगेटिव है तो माइनस साइन इंक्लूड कर लिया, फिर हैश लगाया, फिर प्रोडक्ट लगाया, फिर उसके बाद वी चेक द साइन ऑफ द वेरिएबल, इट इज माइनस और प्लस, राइट? माइनस और प्लस की जगह आप डायरेक्टली 0 1 भी लिख सकते हो, तो दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। देन वी uh, attach the last thing, that is the e, that is empty or non empty. In this way you will get your unique key, जो कि यूनिकली सिर्फ उसी स्टेट को डिफाइन करती होगी, आपकी कोलिजन नहीं होंगी, you now have a unique key for each state, ठीक है? और then you can directly check कि if that key already exists in the map, इसका मतलब वो स्टेट ऑलरेडी एनकाउंटर हो चुका है, you should not go forward। अगर नहीं हुआ है then you basically check कि you have to consider that product or not। excuse me। या सो व्हाट डू वी डू, इफ यू एक्सीड द प्रोडक्ट, सिंपल सी बात है, यहाँ पर आपको पता है कि भाई अगर आप रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन करोगे ना, तो आपका हो सकता है कि आप इंटीजर रेंज के बाहर चले जाओ। लेट्स से अगर आपका प्रोडक्ट ऑलरेडी लिमिट को पार कर रहा है ना, तो ठीक है, अगर इनकेस इट एक्सीड्स द लिमिट, तो उसको लिमिट +1 के इक्वल कर दो, ताकि आपका जो ओवरफ्लो वाला प्रॉब्लम है वो भी यहाँ पर हैंडल हो जाएगा। एंड इफ नॉट, देन यू जस्ट मेक द प्रोडक्ट एज प्रोडक्ट इनटू नम्स ऑफ आई। और ये बेसिकली पता लगाता है कि इनकेस अगर पी जीरो है, इसका मतलब आपको -1 लेना है, यानी कि नेगेटिवली ऐड करना है। इफ इट्स 1, बेसिकली आपको प्लस करना है। सो देन वी हैव टू स्टेटमेंट्स, दिस इज कि हम उस करंट नम्स ऑफ आई को अपने सबसेट में इंक्लूड कर रहे हैं, एंड द सेकंड वन इज कि इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। सो यू कैन सी इट्स जस्ट 0 1 knapsack, टेक नो टेक, एंड देन वी जस्ट स्टोर दैट द corresponding optimal solution for that key, एंड दिस बेसिकली ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द सोल्यूशन, ठीक है? आप देख सकते हो कोड बहुत छोटा है, प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी बहुत छोटा है, बहुत ही, एक बार जब लॉजिक बन जाता है तो बहुत इजी प्रॉब्लम है, बहुत सिंपल है। द ओनली प्रॉब्लम इज वाज फिगरिंग आउट द कंस्ट्रेंट पार्ट, कि भाई इसको हैंडल कैसे करें, ठीक है? इसके लिए डीपी एरे बनाएं या कुछ और करें, इसमें कितने ऑपरेशन लग रहे होंगे, ये सोचते सोचते आपका बहुत टाइम चला गया होगा। तो रिमेंबर, व्हेनेवर द कंस्ट्रेंट्स आर गोइंग वेरी हाई, आप देख सकते हो कि लिमिट एक्सीड हो रही है बहुत ज्यादा, देयर इज अ हाई चांस कि द एक्चुअल नंबर ऑफ स्टेट्स दैट यू नीड टू calculate your solution would be very less। तो ऐसे केस में instead of wasting your memory and creating big arrays, you can directly use dynamic data structures like map or set or whatever there is, right? So this brings us to the end of solution problem number 3। इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना होगा? इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अब इन द वर्स्ट केस आप निकालने बैठोगे तो इट्स लाइक प्रोडक्ट इनटू सम्स इनटू n इनटू 2, राइट? क्योंकि आपके पास टू बी ऑनेस्ट इसमें 5 वेरिएबल्स हैं, प्रोडक्ट मींस 5000, लिमिट जो आपका k होता है दैट इज आल्सो डिनोट बाय 2000, आप उसके ऊपर जा नहीं सकते हो, राइट? देन योर n इज 150, and then you have two variables, one is the sign variable, उसके two possibilities हैं, at the same time you have what, empty non empty, that is also two possibilities, so it's like 2 into 2 into 150 into 1800 into 5000। so अगर आप इसको निकालोगे ना, it is already very big, it is already very big, ठीक है? अगर आप इसको निकालने की कोशिश करोगे, it is very big, and आपको लगेगा कि ये एक्सीड कर रहा होगा टाइम लिमिट, पर ये एक्सीड नहीं कर रहा है, क्योंकि द एक्चुअल नंबर ऑफ स्टेट्स आर वेरी लेस, जो आके आपको कैलकुलेट करनी होंगे, राइट? दैट इज वाई दिस सोल्यूशन विल वर्क, ठीक है? और स्टोरेज का प्रॉब्लम हमने स्ट्रिंग का यूज करके हैंडल कर लिया, राइट? द मेमरी इज अगेन द सेम थिंग कि जितने नंबर ऑफ स्टेट्स होंगे, अब एक्चुअल नंबर ऑफ स्टेट्स हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, सो वी विल जस्ट गो विद ऑर्डर n इनटू प्रोडक्ट इनटू सम्स इनटू 2 इनटू 2। बट टू बी ऑनेस्ट ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सही नहीं है, इट्स नॉट कंप्लीटली एक्चुअल, बिकॉज द एक्चुअल नंबर ऑफ स्टेट्स इज लेस। तभी मैं कह रहा हूँ दिस प्रॉब्लम वाज वेरी फ्रस्ट्रेटिंग, इट वाज वेरी कंफ्यूजिंग, और मैक्सिमम लोगों का टाइम वेस्ट इसी चीज में हुआ है।
ठीक है, एंड दैट इज व्हाई आई वुड से कि दिस प्रॉब्लम इज एक्चुअली नॉट वर्थ इट सॉल्विंग, राइट? पर क्योंकि कॉन्टेस्ट में था तो करना था ही. विद दिस नाउ वील मूव टू प्रॉब्लम नंबर 4. Okay, so now let's start with problem number 4, right? uh, okay. Okay. So problem number 4 is again the same as problem number 1. Question पूरा completely same है. The only thing that has changed is basically the constraint. ठीक है? Again, but still I will read the problem. Given an array nums, you can perform the following operation a number of times. Select adjacent pair with minimum sum. If multiple such pairs exist, choose the leftmost one. Replace the pair with their sum. Return the minimum number of operations needed to make the array non-decreasing. ठीक है, और नॉन डिक्रीजिंग आई थिंक एवरीवन नोस, राइट? सो इट्स द सेम क्वेश्चन as problem number 1, but the constraints are harder, and that's where the solution completely changes. Now you can no longer use your brute force order n square solution. Why? Because even the examples are same. Now the constraints have drastically changed. Earlier, the size of the array was around 50, but now the size of the array is around 10 to the power of 5, and also the values in the array have become very big, from minus 10 to the power of 9 up to 10 to the power of 9. Okay, now how do we handle this problem? This problem was actually, to be honest, quite nice. Okay, this needed a good observation as well as knowledge of data structure. ठीक है, यहाँ पर एक्चुअली लॉजिक बिल्डिंग बहुत काम आती है. दिस क्वेश्चन वाज, टू बी ऑनेस्ट, वेरी नाइस. ठीक है, मैं आई विल सजेस्ट कि इस प्रॉब्लम को ट्राई आउट करो. अगर नहीं भी हो पाए तो कोई बात नहीं, बट स्टिल यू विल लर्न एक्चुअली अ लॉट फ्रॉम दिस प्रॉब्लम. इट एक्चुअली एनकम्पासेस प्रॉपर यूज ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, और यहाँ पर आप पहली बार, शायद पहली बार यूज देखोगे लिंक लिस्ट का एक्चुअल में यूज होते हुए, राइट? लिंक लिस्ट और ग्राफ का जनरली यूज ऐसे डायरेक्टली आपको नहीं दिखता है क्वेश्चंस पे. कभी भी आपने लिंक लिस्ट यूज नहीं करी होगी किसी क्वेश्चन में, अनटिल अनलेस कि क्वेश्चन डायरेक्टली ही लिंक लिस्ट के ऊपर था. ठीक है, पर यहाँ पर पहली बार ऐसा हुआ कि आई हैव यूज्ड इन माय सॉल्यूशन लिंक लिस्ट. देयर आर आल्सो अदर पॉसिबल सॉल्यूशंस, तो आई एम नॉट कंस्ट्रेंटिंग एनीवन कि भाई इसी सॉल्यूशन को देखो. यू कैन आल्सो लुक अप अदर सॉल्यूशंस एज वेल, बट दिस सॉल्यूशन विल यूज लिंक लिस्ट, राइट? एंड दिस एक्चुअली वेरी नाइस प्रॉब्लम. ठीक है, अब सबसे पहले कंस्ट्रेंट के अकॉर्डिंग ना हम प्रॉब्लम को हल्का समझते हैं. ठीक है, थोड़ा समझते हैं. ठीक है, let's go to the board. Okay, I hope everyone can see. Okay, so we are with now problem number 4, right? Problem 4. Now सबसे पहले let me write the example 5 2 3 1. अच्छा, जब हमारे पास कोई एक एरे आता है, जब भी हमारे पास कोई एक एरे आता है, देन हाउ डू वी डिसाइड कि ये एरे सॉर्टेड है कि नहीं? हाउ डू यू नो कि एरे सॉर्टेड है कि नहीं? यू बेसिकली डू अ चेक. ठीक है, यू डू अ चेक कि आप आइटरेट करते हो, एंड वेनेवर यू गेट एट एनी इंडेक्स सच दैट ए ऑफ आई डी एक्स इज बिगर देन ए ऑफ आई डी एक्स प्लस 1. दिस मीन्स का आपका जो एरे है दैट इज अनसॉर्टेड, राइट? अनसॉर्टेड. ठीक है, सिंपल सी बात है, जहां पर ये चीज फॉलो नहीं हो रही है वहां पर तो एरे सॉर्टेड है ना. इसका मतलब आपका इतना हिस्सा जो है एरे का, दैट इज ऑलरेडी सॉर्टेड. दिस मीन्स कि इस पे फोकस करने का कोई सेंस वैसे भी नहीं है, राइट? देयर इज नो सेंस ऑफ वेस्टिंग योर टाइम टू थिंक अबाउट दिस मिसमैच, दिस थिंग, राइट? क्योंकि ऑलरेडी सॉर्टेड है. तो बेसिकली इस प्रॉब्लम में वी हैव टू फोकस नाउ इंस्टेड ऑफ चेकिंग द होल एरे अगेन एंड अगेन. ठीक है, जैसे कि हमारा हम देख सकते थे कि इनिशियली वी वर यूजिंग अ चेक फंक्शन, राइट? दैट वाज कंटिन्यूअसली चेकिंग आफ्टर एवरी ऑपरेशन if the array is sorted or not. But this time we cannot afford that, right? We have to do something very clever that optimizes that checking part, right? As well as it also updates my sum. ठीक है, अब सिंपल सी बात है, आप एरे के ऊपर आइटरेट भी नहीं कर सकते टू अपडेट द सम, राइट? जब आपको उसको याद है, वी हैव टू टेक दैट पेयर एंड रिप्लेस बोथ द नंबर्स विद देयर सम, राइट? तो आप वो भी डायरेक्टली एरे पे नहीं कर सकते बिकॉज दैट आल्सो टेक्स ऑर्डर एन टाइम, राइट? सो नाउ व्हाट शुड वी डू कि हम डायरेक्टली ये चीज कर पाए? सो द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन हियर इज focus on misclass or misplaced, I would say, misplaced pairs. Okay, ऐसे pairs जो कि यहाँ पर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अनसॉर्टेड बनाने में. यू शुड स्पेसिफिकली लुक एट दोज पेयर्स. ठीक है, उनकी तरफ देखो, क्योंकि अगर वो सॉल्व हो गए ना तो आपका एरे ऑलरेडी सॉर्ट हो जाएगा. आपको हर एक एलिमेंट पे जाके देखने की जरूरत नहीं है. इफ योर मिसमैच्ड पेयर्स आर सॉर्टेड, अगर आप उनको सॉल्व कर ले जाते हो, यू कैन इजीली से कि हमारा एरे जो है वो हमारा सॉर्टेड हो चुका है. ठीक है, क्योंकि जो एनोमलीज थी आपने उनको स्पेसिफिकली सॉल्व किया है. अगर उन एनोमलीज को सॉल्व कर लोगे तो आपका डायरेक्टली आपका जो एरे है वो सॉर्ट हो जाएगा. दिस वाई आई एम सेइंग कि फोकस ऑन मिस क्लास और मिसप्लेस पेयर्स इंस्टेड ऑफ सीइंग अ कंप्लीट एरे अगेन एंड अगेन. ठीक है, एट द सेम टाइम वी हैव टू ऑप्टिमाइज द टाइम फॉर removing nums of I would say for removing nums of idx plus 1, I would say nums of idx and nums of idx plus 1. ठीक है, इन दोनों को रिमूव करना है एंड रिप्लेसिंग देम विद देयर सम.
ठीक है, इस चीज को हमें ऑप्टिमाइज करना था। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, व्हाट इज द बेस्ट थिंग दैट यू कैन यूज कि जहां पर आप डायरेक्टली उस पॉइंट पे चेक कर पाओ कि जहां पर एनोमली है, एंड एट द सेम टाइम जब आपको रिप्लेस करना है और नई एनोमलीज को चेक करना है। सिंपल सी बात है, जब आप किसी भी दो नंबर्स को स्क्वाश करके सिंगल नंबर पे लाओगे, देन इट इज पॉसिबल कि एक नई एनोमली क्रिएट हो जाए, एक नया अनसॉर्टेडनेस का जो वो है पेयर जनरेट हो जाए, कि सच दैट कि मान लो आपने इसको ऐड करके आपने एक नया नंबर बनाया, सम बनाया, क्या हो सकता है कि इसके आने के बाद से एक नया एनोमली जनरेट हो जाए इसके बाद। लेट से इनिशियली आपका 2 3 4 था मान लो, ठीक है, 2 3 4 दिया हुआ था, लेट से माय एरे वाज लाइक 5 2 3 4, ठीक है। अब मान लो आपने 2 और 3 को ऐड कर दिया क्योंकि सबसे छोटा सम यही है, राइट। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इट विल बिकम 5 5 4। तो आप देख सकते हो इसको स्क्वाश करके जब आप एक नए एलिमेंट को बनाया, उसकी वजह से एक नई एनोमली या फिर मिसमैच इंट्रोड्यूस हो गया है, राइट। सो आपको ये दोनों चीजें हैंडल करनी है वेरी एफिशिएंटली, राइट। इसको बहुत ही एफिशिएंटली हैंडल करना है। एंड व्हाट आर द थिंग्स दैट यू कैन डू। सिंपल सी बात है, ये अपडेट्स आप या तो ऑर्डर एन, या तो आप ऑर्डर वन में करो, या तो ऑर्डर लॉग इन में करो, या तो एसक्यूआरटी एन में करो, क्योंकि आपका जो साइज ऑफ एरे है, आई थिंक दैट इज अराउंड 10 to the power of 4, राइट, 10 to the power of 5, राइट। अच्छा ठीक है, सो इन दैट केस आप सिर्फ लॉग इन और क्या कहते हैं, ऑर्डर वन को ही सपोर्ट कर सकते हो, अफोर्ड कर सकते हो, राइट। सो ये दोनों ऑपरेशन हमको एफिशिएंटली करने हैं, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। द बेस्ट थिंग हियर व्हिच आई थॉट वाज कि आप क्या करो, ये जो नंबर्स है ना, इनको डबल ही लिंक लिस्ट में कन्वर्ट करो। सिंगल लिंक लिस्ट नहीं, डबल ही लिंक लिस्ट। वाई? क्योंकि जब आप किसी नंबर को रिप्लेस करते हो तो आपको उसका प्रीवियस भी देखना है और आपको उसका नेक्स्ट भी देखना है। दैट्स वाई इट्स बेटर टू यूज अ डबली लिंक लिस्ट। तो हम क्या करते हैं, इन नंबर से एक डबली लिंक लिस्ट जनरेट करते हैं। लाइक इट हैज अ प्रीवियस एंड इट हैज अ नेक्स्ट, राइट। आपका डबली लिंक लिस्ट का रिप्रेजेंटेशन जनरली ऐसे होता है, राइट। सो लाइक इन दिस वे वी हैव अ लिंक लिस्ट, राइट। हमारा 5 2 3 4 हमने कर लिया। नाउ व्हाट डू वी डू। अब हमको सिंपल सी बात है, मिनिमम सम भी फाइंड करना है। एट ईच आइटरेशन को ये भी देखना है कि भाई जो हमारा मिनिमम सम भी हमको फाइंड करना है, क्योंकि उसी को रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है कि जो आपका एनोमली वाला पेयर है वही अभी मिनिमम सम दे रहा हो, ठीक है। इट इज पॉसिबल कि मान लो जैसे सॉर्टेड है, 2 3 आप देख रहे हो सॉर्टेड है, लेकिन फिर भी आप पहले इसको रिप्लेस करोगे, ठीक है। तो प्रॉब्लम यही है कि आप डायरेक्टली एनोमलीज को सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करोगे कि जितने भी पेयर्स हैं, इन सबका सम ना एक सेट में इंसर्ट करा लो, ठीक है। इंसर्ट कराओगे तो क्या होगा, सबसे पहले इसका सम डालो, तो 7। अब क्या करो, एक और चीज करो, एक बहुत ही इंटेलिजेंट काम करते हैं कि ऐसा करते हैं, इन सबको ना एक इंडेक्स भी दे देते हैं, जैसे लाइक दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, ठीक है। ये हमने इंडेक्स अपनी तरफ से दिया है, क्योंकि लिंक लिस्ट में ना इंडेक्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ इंडेक्सिंग इन लिंक लिस्ट, बट हमें क्योंकि पता है कि ये नंबर्स इस इंडेक्सेस में अरेंज्ड हैं, दैट्स व्हाई वी कैन गिव देम इंडेक्सेस। तो हम क्या करते हैं, सेट में बेसिकली हम दो चीजें डालेंगे, ठीक है। पहली चीज इसका सम डाल सकते हैं, एट द सेम टाइम हम इसका इंडेक्स डाल सकते हैं, राइट। हम इसका इंडेक्स भी डाल सकते हैं, दैट इज लाइक 0। और ये इंडेक्स क्यों डाला पता है, ये इंडेक्स इसलिए डाला है क्योंकि वी नो कि इन केस ऑफ मल्टीपल पेयर्स, अगर ऐसा हो कि मिनिमम सम वाले मल्टीपल पेयर्स आ रहे हैं, तो डायरेक्टली हम इंडेक्स के बेसिस पे देख सकते हैं कि हमें किसको लेना चाहिए, राइट। तो ओके, नाउ जैसे हमने 7 0 पुश कराया, ठीक है, इन अ सिमिलर वे हम क्या 5 0 पुश कराएंगे, 5 1 पुश कराएंगे, ठीक है, क्योंकि ये इस इंडेक्स से स्टार्ट होता है, बेसिकली स्टार्टिंग इंडेक्स से देखते हैं, ठीक है। सो हटाओ, ओके। एंड देन वी हैव व्हाट, देन वी हैव 3 + 4 is 7, 7 2। तो हमारे ये तीन पेयर सेट में आते हैं, राइट। सो वी कैन सी यहाँ पर सबसे छोटा सम क्या है, दैट इज बेसिकली 5 1। सो ये ऑलरेडी अरेंज हो जाएगा, बिकॉज वी नो कि जो सेट होता है वो सॉर्टेड ऑर्डर में रखता है। सो हमारे सेट में कुछ ऐसे ऐसे बन के आएगा, राइट। नाउ व्हाट वी कैन डू, वी कैन सी कि डायरेक्टली हमें इसको रिप्लेस करना है, इस पेयर को रिप्लेस करना है। सो वी नो द स्टार्टिंग इंडेक्स ऑफ दिस दिस पेयर। हमें पता है कि यहाँ से ये पेयर स्टार्ट हुआ है, इसका मतलब 1 2 हमने बेसिकली लिया होगा अपने पेयर में, देख सकते हो 1 2 लिया है। सो व्हाट डू वी डू, हम सबसे पहले इस पेयर को उठा लेते हैं, सबसे पहले इस पेयर की वैल्यू उठा लेते हैं, दैट इज सम, क्योंकि हमें जो नई वैल्यूज बनानी है बेसिकली इसी पे बनानी है, ठीक है। 5, और इसका इंडेक्स निकाल लिया 1, ठीक है, कि इस पे हमें चेंजेस करने हैं। अब जो हमारा नया लिंक लिस्ट होगा ना, वो आखिर बनेगा क्या। अब मैं डायरेक्टली इसको फिर से रिड्रॉ करता हूँ। लाइक हमारा ये था 5 2, जल्दी से कर लेते हैं 3, और ये 4, राइट। अब देखो, पॉइंट ये है कि अब हमें इन दोनों को हटा के ना ये बनाना है, ये चीज हमें रेडी करनी है, करेक्ट। तो आप ये देख सकते हो कि बेसिकली यहां से एक नोट गायब हो गई है, ठीक है। ये एक नोट हमने, आप कह रहे हो कि हमने ये वाली नोट जो थी ना, दिस नोट, वी हैव रिमूव्ड दिस नोट, ठीक है, वी हैव रिमूव दिस नोट। अब ये आपने प्रॉब्लम किया होगा, ठीक है, जिन्होंने जो भी डीएसए कर रहे हैं, एवरीवन मस्ट हैव सीन दिस प्रॉब्लम ऑफ रिमूविंग अ नोट फ्रॉम अ लिंक लिस्ट, ठीक है। हमें ये वाला वो पता है, ठीक है, हमें ये वाला क्या कहते हैं नोड पता है, ठीक है। यूजिंग दिस नोड वी कैन रिमूव दिस नोड, राइट। हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारा करंट नोड है, ठीक है, हम इसको किस स्टेप में करेंगे, आई विल जस्ट शो यू द विजुअलाइजेशन हाउ वी परफॉर्म दिस। ओके, हाउ डू वी रीच टू दिस फाइनल थिंग, राइट। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले
5 और इसको 5 बना देंगे, इसको 5 बना देंगे, ठीक है, और ये ऐसे रहेगा। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, नाउ वी हैव टू सी कि जो 3 है ना, वो हमारा रिडंडेंट नोड है, वो हमारा नोड जो है वो नो लॉन्गर इट डज नॉट एग्जिस्ट, राइट? तो इसको रिमूव करना है, सो हमें नए कनेक्शन बनाने होंगे। सो व्हाट डू, वी जस्ट कनेक्ट दिस नोड, इसका नेक्स्ट हम इससे कनेक्ट कर देते हैं, और इसका प्रीवियस हम इससे कनेक्ट कर देते हैं। सो व्हाट डू, वी जस्ट मेक करंट ऑफ नेक्स्ट एज इक्वल टू करंट का नेक्स्ट ऑफ नेक्स्ट, करेक्ट? आप इसका नेक्स्ट 3 है, 3 के नेक्स्ट 4 है, तो आप 5 के नेक्स्ट में 4 को डालोगे, और जो करंट ऑफ नेक्स्ट का प्रीवियस है, ये आप गए, इसका जो प्रीवियस वाला वेरिएबल है, यानी कि जो इसका प्रीवियस पॉइंटर है, जो कि ये है, दिस शुड नो लॉन्गर पॉइंट टू 3, बट इट शुड पॉइंट टू व्हाट, इट शुड पॉइंट टू करंट। आपको ये दो चीजें करनी है। ये दो चीजें जब करोगे, तो ऑलरेडी जो ये वाली नोड है ना, ये वाली नोड जो होगी, वो डिलीट हो जाएगी बीच से। दिस विल डायरेक्टली गेट इरेस्ड, राइट? और ये आपका ऑर्डर वन में हो जाएगा। क्यों? आपके पास डायरेक्टली ये नोड थी, तो आपको बस ये वाला नोड रिमूव करना था, ये ऑर्डर वन में हो जाएगा, राइट? ठीक है, जब आप इसको रिमूव करोगे, आपका जो फाइनल लिस्ट बन के रेडी होगा, वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 5, 5 और 4। आप फिर से यही ऑपरेशन अप्लाई करोगे, चेक करोगे, 5 + 5 10 है, 5 + 4 9 है, या रेंज नहीं है, आप इसको 5 9 बना दोगे, ठीक है? इस तरीके से आप काम करते जाओगे, ठीक है? एंड टू बी ऑनेस्ट, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है इस प्रॉब्लम में, ठीक है? यू जस्ट हैव टू यूज लिंक लिस्ट, एंड यू जस्ट हैव टू यूज सेट फॉर गेटिंग द मिनिमम सम। अच्छा, अब एक और चीज होती है कि आप जो सेट में ये सारे सम स्टोर करा के रखे थे आपने, राइट? ये सब स्टोर करा के रखे थे, जब आप 2 और 3 को इरेज कर रहे हो ना, तो एक्चुअली में आपको ये 5, 2 वाला जो सम था, और जो 3, 4 वाला सम था, जो कि 7 0 और 7 2 है, इनको भी रिमूव कर देना चाहिए। बिकॉज वाई? क्योंकि बिकॉज 2 and 3 नो लॉन्गर एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, बट दे हैव बीन स्क्वॉश डाउन टू अ सिंगल समेशन नंबर, राइट? इसलिए आपको जो करंट वाला जो नोड है, उसका प्रीवियस का जो सम है, वो भी डिलीट करना है, और इसका जो नेक्स्ट का सम है, नेक्स्ट के बाद का जो सम है, उसको भी डिलीट करना है। याद रखना, आपको सम डिलीट करना है, इन नोड्स को डिलीट नहीं करना है, इनके सम को डिलीट करना है। सो व्हाट यू डू व्हेन यू आर deleting this node, and you are squashing it down to a single node 5, then you will remove the sum of 5 and 2 and 3 and 4, क्योंकि अब ये एग्जिस्ट नहीं करते हैं। और जब आप इनको हटाओगे, एट द सेम टाइम जब आप नया पेयर पुश करोगे, तो सिंपल सी बात है, जब 5 5 4 बन गया होगा ना, आपका 5 5 4 बन गया होगा, तो अब ये नए पेयर्स जो बने हैं, इनका सम आप पुश करा दोगे, तो इट विल लाइक 10, 0, और क्या, दिस विल बी 9, 1, ठीक है? इन दिस वे बेसिकली यू विल प्रोसीड फर्दर। आप फिर से सेम चीज करोगे, तो आप देख सकते हो पर ऑपरेशन आपको ऑर्डर वन टाइम लग रहा है, राइट? पर ऑपरेशन हाउ मच टाइम आर वी टेकिंग, ठीक है? ये डिलीशन ऑफ नोड इज टेकिंग व्हाट, ऑर्डर वन टाइम, ठीक है? सेट से निकालने में आपको लॉगिन टाइम लग सकता है, पुश करने में लॉगिन टाइम लगता है, बट टू बी ऑनेस्ट उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। बट ठीक है, चलो लॉगिन ले भी लिया, मान लो मैंने लॉगिन भी ले लिया, ठीक है, लॉगिन भी ले लिया, नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है? पर क्वेरी, पर ऑपरेशन मुझे लॉगिन टाइम लग रहा है, ठीक है? मैं 3 डिलीशन करता हूँ, +3 -3, और 2 एडिशन करता हूँ, क्योंकि जब नया मेरा नोड बनेगा, तो उसके जो नए पेयर्स आएंगे, नए एडिशन मेंबर्स होंगे, उनके सम को मुझे पुश कराना होगा। दैट्स व्हाई 3 डिलीशंस, 2 एडिशंस। सो यू कैन सी नेट वेट क्या है, 1 डिलीशन है। दैट इज व्हाई एवरी टाइम यू आर गेटिंग 1 नोड लेस, ठीक है? इसी वजह से आप देख सकते हो कि हर बार आपका जो लिस्ट का लेंथ है, दैट इज डिक्रीजिंग बाय 1, क्योंकि आप 3 डिलीशन कर रहे हो और 2 एडिशन कर रहे हो, राइट? इन दिस वे बेसिकली यू विल मूव फॉरवर्ड, और आप इसका आंसर निकाल लोगे एट द एंड। जब भी आपका जो मिसप्लेस्ड है, मिसप्लेस बेसिकली द नंबर ऑफ मिसमैचिंग्स, अगर वो 0 पहुंच जाता है, इसका मतलब आपका जो एरे है वो सॉर्ट हो चुका है। सो व्हाट डू, अब इसके कोड पार्ट पे आते हैं, राइट? Okay, so how I solve this problem? So first of all, you can see I created a list. Okay, I created a list. I hope इसको मैं थोड़ा जूम इन कर देता हूँ। ओके, राइट। सबसे पहले आई क्रिएटेड अ लिस्ट, आ डबली लिंक लिस्ट। सो आप ये डायरेक्टली देख सकते हो कि इस तरीके से आप डबल लिंक लिस्ट बना सकते हो, इंप्लीमेंटेशन का कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? एंड देन बेसिकली देन यू टेक अ टेम्पररी वेरिएबल टू स्टोर द हेड। अब आपका पूरा काम शुरू होता है। नाउ यू टेक दिस सेट टू स्टोर द सम्स ऑफ ईच पेयर, ठीक है? और ये मिसप्लेस बेसिकली कैलकुलेट करेगा कि कहाँ कहाँ पर मेरी एनोमली या फिर मिसप्लेसमेंट है। सो बेसिकली इफ द करंट वेरिएबल करंट नोड हैज अ वैल्यू बिगर देन द नेक्स्ट नोड वैल्यू, देन बेसिकली हमारा क्या है, एनोमली मिसमैच है। तो हम अपने मिसप्लेस को या मिसमैच को बढ़ा देंगे, +1 काउंट कर देंगे, और सबके पेयर, जितने भी पेयर हैं, उनको हम उनके इंडेक्स के साथ में, याद रखना, ठीक है? उनके इंडेक्स के साथ में, ताकि हम अरेंज कर पाए उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में, राइट, अकॉर्डिंग टू द इंडेक्स एज वेल। हम इसको पुश करा देंगे, एंड दिस वे वी बेसिकली मूव टू द एंड। अब हमारे पास सारे पेयर्स हैं और सारे सम हैं। नाउ वी स्टार्ट आवर अप्रोच। जब तक हमारा जो मिसप्लेस्ड है, बेसिकली जब तक एनोमलीज हमारी जीरो नहीं हो जाती हैं, तब तक वील कीप ऑन डूइंग द दिस ऑपरेशन, ठीक है? तो बेसिकली ये मिसप्लेस इन द वर्स्ट केस ऑर्डर एन जा सकता है, तो इसका मतलब हमें यहीं पर ऑप्टिमाइज करना होगा। सबसे पहले क्या करोगे? सबसे पहले, अच्छा एक और चीज, जब मैंने ये डबल इंग्लिश बनाई थी ना, तब मैंने एक और मैप लिया हुआ था। ये मैप क्या करता है? दिस मैप बेसिकली मैप्स द इंडेक्सेस टू दैट पर्टिकुलर नोड। अब सिंपल सी बात है, आप नोड को डायरेक्टली स्टोर करने का कोई सेंस नहीं बनता है, इसलिए हमने क्या किया था, नोड में एक इंडेक्स नाम का एक एट्रीब्यूट भी डाल रखा था।
हमने क्या किया, उस एट्रीब्यूट का यूज करके हमने एक मैपिंग स्टैब्लिश कर ली कि भाई, क्योंकि सेट में सिंपल सी बात है, हमको सॉर्ट करना है तो हमको इंडेक्स चाहिए ना, हम डायरेक्टली नोड को यूज नहीं कर सकते। तो दैट्स व्हाई व्हाट डू वी डू, कि हम एक इंडेक्स और नोड की मैपिंग कर लेते हैं कि अगर ये इंडेक्स है तो इसका मतलब ये नोड होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली जब हम सेट से अपना पहला वेरिएबल उठाते हैं, पहली चीज उठाते हैं, क्योंकि डायरेक्टली वो सबसे सबसे छोटी सबसे छोटा सम होगा। सो एमपी ऑफ सेकंड पे हमको उसका इंडेक्स मिलता है, उस इंडेक्स से हम डायरेक्टली उस नोड पे चले जाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास वो डायरेक्टली नोड आ गई, उस नोड का नेक्स्ट निकाल लिया, उस नोड का प्रीवियस निकाल लिया। नाउ वी हैव सम वेरिएबल्स कि भाई प्रीवियस वैल्यू और नेक्स्ट वैल्यू देखने के लिए, और हम इसको इरेज कर देंगे ये पेयर, क्योंकि अब नो लॉन्गर एग्जिस्ट। नाउ वी चेक इफ द करंट वैल्यू इज बिगर देन नेक्स्ट वैल्यू। ठीक है, अगर मेरी करंट वैल्यू बड़ी हो चुकी है नेक्स्ट वैल्यू से, इसका मतलब क्या है कि मैंने क्या किया है, मैंने एक एनोमली सॉल्व करी है, राइट। मैंने एक एनोमली सॉल्व या फिर एक मिसमैच को सॉल्व किया, दैट्स व्हाई द मिसप्लेस काउंटर विल गो डाउन बाय 1। ठीक है, फिर हम चेक करते हैं कि हमारा प्रीवियस वैल्यू अगर एग्जिस्ट करता है, सिंपल सी बात है, एज आई सेड कि जब तुम किसी नोड को डिलीट करते हो तो तुम उसके जो प्रीवियस सम है और जो नेक्स्ट सम है उनको भी डिलीट करते हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम सम को डिलीट कर रहे हैं, राइट। इफ प्रीवियस एग्जिस्ट तो डिलीट द प्रीवियस सम, एंड इफ द नेक्स्ट एग्जिस्ट देन ऑल्सो डिलीट द नेक्स्ट सम, जो कि हमारा नेक्स्ट का नेक्स्ट है, राइट। उसके बाद अब हम सीधे आते हैं कि प्रीवियस वी इज बिगर देन करंट वैल्यू। ये क्यों है, दिस पार्ट, these two if conditions were basically meant for checking कि मान लो तुमने एक एनोमली सॉल्व करी। ठीक है, मान लो तुमने एक एनोमली सॉल्व करी। ठीक है, और एक नई एनोमली इंट्रोड्यूस हो गई। ठीक है, इसका मतलब है कि टोटल मिसप्लेस में कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, -1 +1 बराबर ही हो गया। ठीक है, कोई मिसप्लेस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुमने एक एनोमली अगर सॉल्व कर ली, उसी टाइम पे एक एनोमली बढ़ भी गई, राइट। इन अ सिमिलर वे, अगर तुमने एक एनोमली सॉल्व, मान लो तुमने एनोमली सॉल्व नहीं करी, पर तुम्हारे ये ऑपरेशन करने की वजह से एक एनोमली बढ़ गई, तो तुम्हें उसको भी देखना होगा, राइट। सो दैट्स व्हाई दीज टू वेरिएबल्स आर फॉर चेकिंग कि प्रीवियसली कोई एनोमली एग्जिस्ट करती थी क्या। अगर प्रीवियसली एनोमली एग्जिस्ट करती थी तो इसका मतलब है कि वो +1 -1 का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, राइट। तो दैट इज व्हाई हमने ये दो वेरिएबल लिए थे। देन वी बेसिकली असाइन द वैल्यू, दैट इज द सम जो हमारा आया था, टू द करंट नोड, और फिर हम नेक्स्ट को इक्वल कर देते हैं नेक्स्ट ऑफ नेक्स्ट के। सो बेसिकली हमने देखा था कि नेक्स्ट ऑफ नेक्स्ट के बराबर कर दिया हमने, 5 को डायरेक्टली 2 को 5 वाले नोड को डायरेक्टली 4 से अटैच कर दिया था, राइट। फिर हम आते हैं प्रीवियस चेक करते हैं कि अगर प्रीवियस एक्सिस्ट करता है तो हम चेक करते हैं कि पहले से यू नो इफ लेट्स से कि हमारा ऑलरेडी जो प्रीवियस वैल्यू है दैट इज बिगर देन करंट वैल्यू, इसका मतलब ऑलरेडी क्या है, हमारा ये एनोमली है, राइट। और प्रीवियस अगर 1 नहीं था, अगर प्रीवियस 1 नहीं था, इसका मतलब क्या हुआ है, इसका मतलब एनोमली बढ़ेगी। ठीक है, क्योंकि सिंपल सी बात है, +1 -1 अगर हो जाता तब तो कोई दिक्कत नहीं थी, पर यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर एनोमली आ गई है, दिस इज अ न्यू एनोमली। ठीक है, और प्रीवियसली ये एनोमली नहीं थी। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि दिस मीन्स करेंटली दिस एनोमली हैज अराइज्ड। ठीक है, एंड प्रीवियसली दिस एनोमली वाज नॉट एग्जिस्टिंग, दिस मीन्स कि +1 बढ़ाओगे तुम, राइट। इन अ सिमिलर वे, अगर ये एनोमली पहले नहीं थी, ये एनोमली पहले नहीं थी, ठीक है, और प्रीवियसली सॉरी, ये एनोमली अब नहीं रह गई। ठीक है, एल्स में हम कब आएंगे, एल्स मींस कि ये एनोमली अब नाउ इट हैज बीन रिमूव्ड, इट हैज नाउ वैनिश्ड, और प्रीवियसली दिस एनोमली वाज, प्रीवियसली ये एनोमली प्रेजेंट थी या मिसमैच प्रेजेंट था। इसका मतलब क्या हुआ, आपने एक्चुअली में एक एनोमली को सॉल्व कर दिया है, दैट्स व्हाई वी डिक्रीमेंट द काउंट। और फिर हम इसका जो सम है वो पुश करा देते हैं। इन सिमिलर वे यू आल्सो चेक फॉर द नेक्स्ट वैल्यू कि भाई इफ द करंट वैल्यू इज बिगर देन नेक्स्ट वैल्यू। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि एनोमली है। ठीक है, और प्रीवियसली अगर ये एनोमली नहीं थी, इसका मतलब आपने एक्स्ट्रा एनोमली क्या करी है, मिसमैच आपने बढ़ा दिया है, दैट्स व्हाई मिसप्लेस प्लस प्लस। इन केस ये एनोमली अब एग्जिस्ट नहीं करती है, देयर इज नो सच मिसमैच, और पहले ये एनोमली एग्जिस्ट करती थी। ठीक है, दिस मीन्स कि आपने एक एनोमली सॉल्व कर दी है, दैट्स व्हाई वी नीड टू डिक्रीमेंट द काउंट। ठीक है, इस तरीके से आप काउंट डिक्रीमेंट करोगे और बढ़ाओगे, एंड एट द एंड यू अगेन पुश द द सम एंड द इंडेक्स of that particular node जो नई बनी है, and you increment the count of the operations, and whenever you reach your misplaced as 0, कि इसका मतलब है कि आपके पास अब कोई भी मिसमैच, कोई भी एनोमली नहीं रह गई है, you just return the value of answer। अब यहाँ पर ऑपरेशन यू कैन सी द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज व्हाट, पर ऑपरेशन दिस विल टेक ऑर्डर 1 टाइम, और यू कैन से ऑर्डर लॉग एन टाइम। ठीक है, देखो रिमूवल जो हो रहा है और जो एडिशन ऑफ नोड हो रहा है, ठीक है, वो बेसिकली ऑर्डर 1 टाइम ले रहा है। ठीक है, लॉग एन टाइम आपका सिर्फ सेट में पुश करने में और उससे फर्स्ट एलिमेंट निकालने में जा रहा है, राइट। सो आई वुड से ऑर्डर 1 एवरेज। ठीक है, एंड दिस आंसर दिस मिसप्लेस्ड कैन एट मैक्स गो टू n टाइम्स, तो n into 1 पर ईच स्टेप गिव्स यू ऑर्डर n रन टाइम ओवरऑल, एंड आपका स्पेस भी ऑर्डर n ही है, वी कैन सी। सो दिस बेसिकली हाउ यू विल सॉल्व द फोर्थ प्रॉब्लम, एंड आई थिंक दिस वाज अ वेरी नाइस प्रॉब्लम। ठीक है, ये काफी अच्छा प्रॉब्लम था, काफी थॉट प्रोवोकिंग प्रॉब्लम था। ठीक है, इसको सॉल्व पक्का करना, ट्राई आउट तो एटलीस्ट कर ही लेना। So yeah, and with this we basically come to the end of all the problems in Lead Code Contest Weekly 444. Overall, ये contest was not very balanced. I would not say it was balanced. It was particularly on a harder side. But आपने इसको अटेम्प्ट किया है, वेरी गुड। अब सॉल्व करो इसके प्रॉब्लम्स। ठीक है, स्पेसिफिकली फोर्थ, सेकंड, थर्ड प्रॉब्लम भी कर लो, कोई बात नहीं है। ठीक है, सो इनको ट्राई आउट करो, एंड इफ यू फील एनी प्रॉब्लम यू कैन रीच आउट टू मी बाय द लिंक्स एंड बाय द socials अवेलेबल इन द comment section, and bye bye।
सो आई होप कि सबको सोल्यूशन समझ में आए होंगे. इफ यू अंडरस्टूड ऑल द सॉल्यूशंस, इफ यू अंडरस्टूड द solution of the problem, the approach for the problem, if you liked it, then do like, share, subscribe and comment. Drop a like, comment करो what did you like, what you do not understand, what did you understand, आप कैसा लगा solution, comment करो. That motivates me to further undertake such kind of task, because to be honest it is time taking. कि problem solve करके बाद उसका video बनाना, it's actually time taking. Okay, so please do comment, do drop a like, do subscribe, and please press the bell icon so that you never miss an update from my side. And there are more such contests to come, और हम discuss करते रहेंगे in this way. And thank you everyone for supporting the channel and for supporting me as well. Shout out to all the Code Time community, it's Code Time community, that you are, विद द चैनल एज वेल. आप कंटिन्यूसली लगातार कंटेंट देख रहे हो, ठीक है, इसको एंड तक देखो प्लीज, ठीक है. इट विल एक्चुअली इंक्रीज द शेयर टाइम एज वेल एज द स्प्रेड ऑफ दीज वीडियोस, ठीक है. और शेयर करो अपने पीयर्स में, फ्रेंड्स में, सो दैट एवरीवन गेट्स द बेनिफिट. एंड वील मीट अगेन विद अनदर वीडियो नेक्स्ट टाइम, विद सम अनदर कॉन्सेप्ट और सम विद अनदर डीएसए लेक्चर और विद सम वीकली कॉन्टेस्ट सॉल्यूशंस. तब तक के लिए बाय बाय, ग्राइंड करते रहो.